Hi guys, good morning. Good morning everyone. Thank you all for joining. Good morning, sir. Good morning, sorry. Uh, um, okay, Sean, you want to start with this news? You have a meeting? Yes, sir. Just one second. Go ahead, Sean. Yes, so today's news is about Titan. Read this interesting part where Titan is going to launch a new brand called Beyond, and the main purpose of launching that brand is it is going to be its first lab-grown diamond segment. So Titan essentially has always been into jewelry. It has four like major business segments. Out of one of them is jewelry, and you had brands like Tanishq and CaratLane, Zoya, but it was predominantly like into natural diamonds, which obviously, as we know, are very expensive. But recently, in the last few years, there has been a new change in the industry where lab-grown diamonds are also now becoming very popular, and for that, it has launched a new brand. It expects that the current market is around 0.4 billion rupees for lab grown diamonds and 10 billion for natural. Slightly, the lab grown might grow at a larger pace in the next 5 years. So the main difference between the two is that natural diamonds, like they essentially are like due to the natural effects that take place after hundreds and thousands of years. And then lab grown diamonds is like it happens in the lab under the scientists and under a specific formula. The end product is like it's almost the same as in the chemistry, but it's just that the way those two diamonds are formed is what makes the difference. Lab grown diamonds essentially are the main advantage is that the look wise is almost same and it's 50 to 70% cheaper. So it's predominantly being targeted at younger crowds because natural diamonds are very expensive and they are the main point of buying them is that they are very rare. So the this is the news, and it's like a new business segment which Titan is targeting. Sean, you are tracking FMCG, right? You have made a report on FMCG as well. Yes, sir. So what is the purpose of telling this news today? Sir, I was like giving FMCG for 2 3 days, so I thought Sorry, uh, if you're giving FMCG, sorry, what? I had given like an FMCG news back to back, so I thought I'll give some other sector. Acha, so tell me who are the competitors for Titan in this segment? So you have this thing do you mean like in lab grown diamonds? Yeah, in lab grown diamonds, yes. Uh, in lab grown diamonds, sir, I'm not like researched because I know in jewelry which are the brands. So what is the difference between a lab grown driver and normal diamond? What is the price difference? How do you differentiate? We cannot differentiate like with the naked eye. The price difference is Obviously, generally with the 70. price difference. So what is the price difference? It's around 70%, 60-70% cheaper. What is the one cost of one diamond? Uh, like the what this thing what Titan is planning to launch, it's going to target around like less So than 20 what is 30,000. how much diamond is used in how much carat of gold, or what is the quantity? So that I don't know. Then what is the point of talking about other sectors? ऐसा इंटर में बोलोगे तो उधर रिजेक्ट हो जाओगे. Okay. If you don't know about the sector, I was not saying ठीक है तुमको lab grown, if you know about lab grown diamond, fine, you talk about. तो मैं just I'm just asking basic questions. Mm-hmm. क्या होता है lab grown diamond? कितना लगता है lab grown diamond? That day also, I think Ankita was selling. I told her not to do that. Okay. That is why, see, you have to be consistent. If you're not consistent enough, the same thing I have to repeat again. You have wasted, let's say, 3 minutes of everyone. Mm-hmm. What is the point of doing all those things? Yesterday, Ankita, yesterday, I think day before yesterday only, I told her not to write the news on that because we don't know, we don't understand the market. If you understand, then tell me. Okay. Okay. Because I gave back to back FMCG, so I thought I can. So what? Back to F. So what? Okay. You don't present also any news. You are writing it as per your understanding. You don't present any of the news. You're not there in the call as well. Okay.
Okay, sir, I'll Aniket, do where the. do you find the news of? अच्छा ये तो Aniket, this lemon tree news was yesterday's news, no? या करेक्ट सर, मतलब कल ये ना कुछ कल। अराउंड 2-3 बजे आई थी ड्यूरिंग हाँ मार्केट दो आवर. तीन बजे है ना, मार्केट आज में आई थी ना, हाँ। करेक्ट करेक्ट. What was the news about? Yeah, go ahead. ये पेपर में नहीं है क्या आज के दिन? कौन से पेपर ये में? पेपर में नहीं आई सर, अभी क्या टॉक्स में है ये लोग, हाँ कंफर्मेशन अभी आया नहीं है. हाँ, या गो अहेड। या सर, 1 सेकंड. So the news is about Lemon Tree, and Lemon Tree is in talks with uh, yeah. So Lemon Tree is in talks with Warburg Pincus. It's a global PE firm. Like it's located all over the globe, and they are in talks with Lemon Tree to acquire around 15% stake from their parent company, that is the promoter group. So like they are acquiring around 15% stake from the APG Strategic RE pool, which also trigger an open offer from the market. And this triggered the stock and it surged around 8% intraday, which is reflecting the investor confidence. And Lemon Tree operates nearly around 9.5 thousand rooms and around 110 plus hotels and their operating models is around 70% is asset light, which means like maximum of their properties are managed and only few properties they own. And if we go into the operational performance, their occupancy was strong, around 70 to 75% in the November to December quarter, and which was much higher from the pre-COVID levels, which was around 60%. Their ARRs also rose from around 47, from around 3,800 to 47 or to 5,000 per room, and the EBITDA margins also expanded from around 28% to 35%. This is reflecting their operational performance is good. Market is demanding their rooms, and like their majority rooms are in the regional and in the tier two cities, which is led by the leisure tourism, leisure, regional, and pilgrimage travel. Leisure to. And this infusion is also bringing around 6 to 12, 10 billion equity if we see by their market cap, and which can potentially reduce their net debt to around 20 to 23 billion and can potentially help in their interest savings roughly around 2 billion annually. And this can also help in their expansion plans, which can be around 700 to 1,000 rooms in the coming few years, which could help in stabilization and can bring around 1.5 to 1.8 billion per 1,000 rooms revenue. Sorry, come again. This strategic alliance, like this strategic acquisition, can infuse around 6 to 10 billion in equity and can help in their expansion plans of around 700 to 1,000 rooms and can bring around 1.5 billion per 1,000 rooms revenue if we see that metric. Okay, per thousand. Okay, I'm not getting it. क्या बोल रहे हो तुम exactly? बेसिकली सर ये जो एक्विजिशन है ये हम्म, अराउंड रफली अराउंड 10 बिलियन इक्विटी मतलब 10 बिलियन कैश लेके आएगा. हाँ एंड अगर वो नेट डेट पे कर दे अपना अराउंड 23 बिलियन, तभी उनके पास कैश बचेगा एंड विच कैन बी यूज फॉर एक्सपेंशन. और अगर वो एक्सपेंशन करते हैं तो पर 1,000 रूम्स पर उनको 1.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इन द कमिंग ईयर. okay. So per thousand rooms, they are able to generate 1.5 and 1.8 revenues. Okay. 1.5 1.8 बिलियन रफली. Okay. एंड अगर अपन अनब्रांडेड होटल्स का सेगमेंट देखें तो इट्स क्वाइट लार्ज एंड ब्रांडेड होटल्स आर वेरी फ्यू. वो तो सो हमने वो दिया ना उस दिन, डिमांड. 16 टोटल रूम्स 20 lakhs करेक्ट है, तो उसमें 16 करेक्ट lakh इज करेक्ट. अनब्रांडेड। तो वो भी रिलेट कर दिया था मैंने इसमें. ओके। एंड अभी की वैल्यूएशंस देखे लेमन ट्री की तो इट्स अराउंड 18 टू 20 ईवी बाय एबिटा बेसिस पर. एंड इंडस्ट्री भी इतनी डिमांड करती है, लाइक आईएचसीएल की भी अराउंड 22 ईवी बाय एबिटा ही है.
So it's quite on par, but if the strategic moves comes into play, it could potentially be triggered into a re-rating. ये भी था. So investor, as summarized, so investor takeaway could be as as we see a 8% sharp rally in the highlights. This is triggering a market positive view. Warburg Pincus re-entry is a structural positive that strengthens the balance sheet, accelerates growth, and supports a higher long-term earnings trajectory. Okay. Okay, fine. I think this was even I saw this news. This was not in newspapers, but कल आया था. So Lemon Roughly Tree, around EIH, all are in focus. I think in newspaper there was somewhere about the cold waves hitting. ऐसा कुछ था. हाँ, ET Now में था. The cold waves. हाँ, सर तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था, यहाँ पे भी था. इसमें भी है। ओके। Okay, so cold waves is so मेरा क्या कहना था कि this cold waves are increasing, the temperature is increasing, so it is good for companies like FMC. आज एक FMCG का भी था, so I guys expected you guys someone to write on this because see FMCG, auto and retail, auto retail hospitality, so ये तीन sectors अगर न्यूज़पेपर में है तो तुम्हारा फर्स्ट न्यूज़ उसी पे होना चाहिए. Then you go for different sectors if you don't find anything. So probably every day there's some other things are coming. And what is saying over here is यहाँ पे ना इमामी डाबर का नाम आया है. As the temperature is increasing, health supplements का growth बढ़ रहा है, and specifically apparels is sorry, health supplements का growth बढ़ रहा है. So health supplement is made by Dabur, वो Dabur Chyawanprash and all है. फिर इमामी का नाम आया इसमें. इमामी is into BoroPlus and antiseptic creams because obviously in in winter season you body पे थोड़ा rashes आते हैं because of that as your body gets dry. Yeah, Imami has a winter portfolio and there was also apparel की बात है तो apparel कोई कंपनी की बात नहीं आई है. It is just about हाँ इसमें आई थी V-Mart retail की बात आई थी that V-Mart retail is growing. Electronics में भी अच्छा Vijay Sales is not listed though. Listed था ना Vijay Sales is listed. Sorry, Vijay Sales is not listed. So apparels में electronics में room heaters की बात आई थी, but ठीक है, that's a very small portion of the Indian markets. So what I find it over here is since the cold wave is growing, मैंने ना मेरे काफी Instagram पे friends ने डाला है where they are in different countries, वहाँ पे काफी heavy snowfall हुआ है. I think काफी इस बार the winter wave is quite severe. And I was just going through the hotel industry data. So yeah, hotel industry, tourism sector. The tourism sector has declined in the December season because probably because of this heavy winter. Because now we will not try to go in some places where there is since winter wave your heat winter cold wave is there, so you probably might delay your travel. क्योंकि मुझे ये पढ़ के याद आया when I say ना शिमला एंड शिलोंग, तो शिमला शिलोंग में काफी बर्फ गिर रही है अभी. मुझे जैसे ध्यान में आया कि नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म है. या करेक्ट टूरिज्म है सेम प्रॉब्लम इन मानसून एंड अभी विंटर में यूजुअली नहीं होते. पीपल ट्राई टू मूव, बट हो सकता है आई एम जस्ट लिंकिंग इट कि इट माइट बी अ इशू ऑन द नॉर्दर्न साइड. तो नॉर्दर्न साइड के होटल्स है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना कि नॉर्दर्न साइड के होटल्स में क्या हो रहा है. बिकॉज उत्तराखंड इज चिलिंग. I think even Shillong is chilling now. Shillong, Shimla, people will not try to go for an vacation now. Okay. Achha, yeah, Kaustubh, anything on the auto? Yeah, hi sir. So I specifically chose an EV news. I know it's not not a lot of impact on the entire sector, but it's TVS, and TVS has been performing fabulously. And the EV has some changes. This is year-on-year data, calendar year 24. Like this has completely changed from the previous year. So I thought, just to get some idea about this side of the sector. So like TVS has overtaken Ola completely in the two-wheeler market. So like the industry sales has grown 11% year on year, and TVS has taken the number one spot. So they have increased 35% year on year. So they are the largest electronic two-wheeler OEM right now in India. And on the previous year, Ola was number one, and it has collapsed 51% year on year.
And Bajaj and Ather are the people who are getting the share. So Bajaj has, come up to second rank and Ather is in third rank. So these are the top three: TVS, Bajaj Auto, and then Ather. But the EV penetration is still low. There is not a lot of, penetration which has happened in this segment. So EV is not, changing the entire two-wheeler space right now. And EV cars are showing momentum because these passenger vehicles increased 77% year on year in this calendar year. This is calendar year data. So mainly from MG, M&M, and Hyundai. So this is the news for TVS and all the Yeah, sectors. so Thank you. also we can mention over here that EV penetration, how much was it in two-wheelers? Yeah, sir. It's quite low. So Yeah, it's that's what still you can see. It's not. 6.3% in It this was year, and previous year it was 6.1%. 1%. So like So you can always 0.2% So you can always say that the EV penetration has increased only marginally by 20 basis points in marginally, calendar year. yes. That's a better way of saying. And now, we know that the TVS EV sales is around 3 lakh units. So probably when we get the sales of TVS, and we know this is only scooter cycles, in the scooters. Because TVS is not into, so Yes. TVS give us specific data about scooters. So we can, take 3 lakh out of that scooter. Then we know that so that 3 lakh is the EVs and others are normal ICE motors. We can also do that. Okay, and when they say they have increased by 35%, so obviously 25 के numbers भी तुम्हारे पास होंगे. So when you make this automobile Yeah. report, तो ये सब चीजें वहाँ पे important होगी. Correct? 1 second. Yeah, thank you, sir. So this can be taken as the referral point. जब बोलते हैं ना सर EV के डेटा नहीं मिलता है, तो ऐसा मिला है ना EV का डेटा सबका मिला है. 1 second, guys. And same way, just a minute. One more on this was so also we can also then this is actually a good news that it is not just an update. Here you Yeah, also sir. find about EVs. When we talk so much about EVs, you have a data point again over here. Tata Motors Yeah, sir, I has did sold mention around, this because he yeah, had 77% year-on-year increase from just three of these. Three of these are major. M&M was major. Mahindra and Mahindra was, so Mahindra, again, I said it again. M&M, Mahindra, and MG and Hyundai. So these three people were major and 77% year-on-year. So like it's currently 1,75,000. And because of the new launches, so that's why they increased so much. yeah. So and you can also mention that the passenger vehicle segment has increased from 2.4 to 4%. That is around 160 basis point increase. This is a data points to be shared because we talk a lot about EVs, but we know it is just contributing 4% to the entire, and it has increased rather. And who has led to the increase? Tata Motors, obviously Tata Motors. So Tata Motors, how much are they selling? Tata 70,000 units is sold by it in the with so 70,000 units is sold by Tata Motors. JSW Kevin sir is selling around 51,000. Mahindra 2 is selling around 33,000. So these all things can be added in your automobile workshop, automobile report. Sir, additionally, like yesterday, we were talking about TCO, total cost ownership. So can we add that point also? Like I've sent you one image where like assuming 100 rupees worth of petrol in electric scooter is covering 45 kilometers. But same thing if we do with the EV scooter, 100 rupees worth is covering 560 kilometers. So that can be a data point. Yes, that is a data point. That is why we can say a two-wheeler is growing. Yeah. No worries, that's it. I just wanted to add that. Two-wheelers is good at EV penetration, but probably because of that electricity issue, nothing else. You know what happened now? I was Tata, Tata, I think Tata Sierra, or I don't know which car. There is an issue with in India is that when you charge your scooter, okay, now in my building, there are children who are playing down. Okay, if I charge my scooty, so one of my neighbor had this problem. He had charged his scooty late night, obviously to go next day to the office. Children's while playing, removed the plug or probably some other things happened, and his scooty wasn't charged for the entire night. Next day, probably he cannot go to the office taking the scooty. So it was a pain. In a city like Pune, you don't get public transport over here.
At least in Mumbai, you get a public transport. Even Hyderabad is the same thing. Tier 1 cities, we are growing cities, the public transport is not that good. Achana, Tata, I think Sierra only, the car, they have come up with that function that if you are charging an EV, I mean, if you are plugging that plug in your car, unless you unlock with your remote, you cannot remove the plug. That is a new thing is coming in EV. ऐसा कुछ हो रहा है EV में, no? ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि तुम लगाओ चार्जिंग पे, कोई ना कोई आके निकाल देगा या गलती से निकल जाएगा. So now Tata Motors have come up with that issue. If you do, it will only get unlocked. You can only remove the charger if you have unlocked the car. So ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत issues है EV में. But two-wheeler is growing well. I will not say that it's not going bad. But if you see this, Ola was having a sales of 4 lakh units, okay, previously, and which has declined. See, was having a 4 lakh unit and it declined to 199. It's because of that issues with Ola. But TVS has just reached 3 lakh. So you see, Ola was so much ahead of these companies. In the probably next few months, Ola share will continue to decline because of that issue, and that share will be taken by TVS or maybe Bajaj Auto. So there's a lot of things were given over here. Even we talk about passenger vehicles. They have told about Hyundai and BYD as 4th and 5th spot. So we know Hyundai का भी हमको data अलग से नहीं आता है. तो हमको अभी EV का data मिल गया कैलेंडर का कि EV में it is selling around 6,700. Hyundai के hardly एक ही EV बिकती है, Creta. बाकी एक है Ioniq and all, but that is very minimum amount. So we can know कि assuming majority of the EV sold was Creta. Hyundai has raised ahead of BMW. Okay, ठीक है. This is Tesla has also. So this is an update. टेस्ला इंडिया में 225 यूनिट बिके हैं, but सेम टाइम और एक कंपनी हैव रीच विनफास्ट. पता है तुमको, if this VinFast has come in, which is giving EVs in the range of 15 to 20 lakhs ही है, वो टाटा मोटर्स के रेंज में, it is also able to sell 826 units. So it's a very small number because अभी चालू है, सितंबर से ही चालू है, सितंबर दिसंबर. So many data we can get it over here for our automobile workshop. So ये सब data important होता है. It is not just an update. क्योंकि electric two-wheelers का when we make an automobile report, ये number से चाहिए हमको. So those who have not done it, make sure you have, write this and report as well. कम से कम एक idea दो percentage. Okay. Avi now. Om, yeah. Om. The news. Chiller news. Yes, sir. Good morning, everyone. My news is about UPL. So, United Beverage Limited is driving growth through availability, capacity, and premiumization. The company has already deployed 40,000 VZ coolers and plans a 50% expansion, directly improving cold beer access in Tier 2 and Tier 3 towns, where the availability strongly correlates with consumption and market share gains. So, to support this, UBL is adding 2 canning lines in Telangana and Maharashtra within 6 months, and a greenfield brewery in 18 months in UP, aligning with management's 5 to 6% growth in beer category in 2026. No, you're not telling it properly. Okay, sir. Be confident. अब तुमको सिर्फ बुलाना चाह, तुमने वापस बहुत बड़ा लिखा है. Why is it so big? क्या हुआ है? What is the news about UBS is? What is the news about Om? UBL is has deployed 40,000 VZ coolers to expand in Tier 2 and Tier 3 cities. Tier 2 and Tier 3 city. Okay. So UBL has installed 400,000. So we don't say 40,000, sorry. 40,000 VZ coolers. For why? This glass door refrigerator used to chill beers, beverages, daily and other food products in a retail outlets. Now this news. Okay, fine. Now, okay, why have they done that? Sir, because to increase the supply in Tier 2 and Tier 3 cities, because it's not very much there. Which supply?
The beer supply. The beer supply. Okay. So why have they done that? Sir, because it's in tier 2 and tier 3 cities, it's not as expected as they wanted. So you can see this now, while beer demand slowed in second half due to heavy rains and affordability, innovation, improvability, and supportive taxation will expect beer category to rebound by 5 to 6% FY25. And you will expect it to continue to outpace the market. ठीक है, ये तो ठीक है. फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? They are rolling out new Kingfisher smooth beer, okay, to increase the demand. अरे ये demand है 5 to 6%. So what are they trying to increase demand? They are launching it. तो ये एक पैराग्राफ हो गया. Right. And ये अगर चाहिए तो ये लिख सकते हो, Kingfisher will be available around Rajasthan, price at 145 for 500 ml and 180 for 650 ml. ओके, इससे लिंक है, सब लिंक हो रही है. करेक्ट. हाँ, और वो क्या कर रहा है? यूबीएल इज आल्सो एक्सपांडिंग कैपेसिटी. ये भी था, और एक इज आल्सो एक्सपांडिंग कैपेसिटी टू मीट द डिमांड with 2 new capacity in line. Telangana and Maharashtra set to become operational within 6 months. And while the company's Greenfield Brewery in Uttar Pradesh remains on track, तो ये ऐसा बोलेंगे, while Uttar Pradesh is on track for a commencement in next 18 months. ये सब नहीं लिखना तुमको. While the company's Greenfield Brewery in Uttar Pradesh remains on track to come online with 18 months. 2 new, so you can start like 3 new capacities are coming, 3 new lines are coming. When is in Telangana, Maharashtra set to be operational by 6 months, and the UP factory is set to be the Greenfield UP facility is set to be available in the next 18 months. So I got 3 points. अगर तुम, even if you make a financial model or make a report, you got 3 points that to tell 5-6% demand क्यों बढ़ने वाला है. And if 5-6% demand is growing, what is UBL doing? हो गया. और क्या न्यूज़ है फिर? बाकी सब तो ठीक है, वो नॉइज है सब, ठीक है. तुमको कुछ डेटा स्पेसिफिक है नहीं. तुमको चाहिए तो यू कैन टेल इट एट द लास्ट कि अगर कोई स्पेसिफिक किंगफिशर के बारे में बोलना है तो. Okay, sir, I'll make the changes. हाँ, तो बेसिक था ना. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट न्यूज़ टू टॉक अबाउट. तुम लिखा है इतने बड़े ना, इसकी वजह प्रॉब्लम हो रहा है बात करने में. कीप इट स्मॉल, कि ज्यादा नहीं लिखना है तो तुम प्रेजेंट कर पाओगे. पहले पहले छोड़ा तो प्रेजेंट करो, एंड देन यू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन की और कितना लिख सकते हैं. ओके. Yes, sir. एंड स्टिक टू द हेडिंग. की हेडिंग में क्या लिखा है तुम मुझे बता रहे हो, और उसके रीजन, बस दैट्स इट. आई डोंट वांट एनी अदर नॉइज कि बाकी सब क्या हो रहा है. हेडिंग से रिलेटेड नहीं है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके. Yes, sir. ओके, अंकिता, एनीथिंग ऑन? Yes, sir. Yeah. Tractor demand. Okay, so I have made the news on the growth on the tractor sector. Sir, actually the India's tractor sector is like they have sold nearly 1 million tractors in 25, up by 11%. And from the last year, it has like supported by good farm conditions, better rural incomes, and other factors. And in talking about the figures, in 25, the market leaders like M&M and Swaraj together held the 42% in the tractor volumes, with M&M at 23.88%, sharing 30,210 tractors in December 25, and Swaraj at 18.72%. And other leaders are also there, like Sonalika and TAFE, Escorts, Kubota, and they are also like they have gained only. And citing the like the Kharif output and favorable Rabi conditions, M&M has also like changed its outlook to the like they are predicting a double-digit growth in like this year. So according to me, it is somewhere I can feel that due to the growth of the FMCG sector also, the like growth of the crops is like the demand of the crop is increasing, and due to which the tractor demand is also increasing. This is what I like personally feel. So this is all from my side. Okay, fine. Fine. So this can be, you can also write this in your automobile report, about the tractor Okay. segment. मतलब So something for this month, at the end of the year, December month. Okay. That what has happened in December. You all have the data, correct?
Yes, yes, sir. And whenever you I say that tractor sale is increasing, tractor sale is probably because of increase in rural income. yes, Good yes. rabi sowing. This is Hmm. basically the Hmm. these are basically the reasons for that. Okay. Good weather So conditions, healthy reservoir levels, increasing yeah. rabi sowing, which is expected to Hmm. sustain the demand. So this all things Kharif improved suffered by. So you have to talk about this all reasons. Usually these are the only reasons which happens. Okay. Okay. So, sir, somewhere I also read that the turnover in the rural areas are more than like urban areas. Like they are more spending in branded things and everything Correct. starting from the small cheap things to the branded things. They are like more into all those things. Yeah, as So because that as the rural income increases, if you Mm. are staying in a rural area and your income increases, probably you will go for a branded product. Hmm. Right. So that is what is happening currently. Okay. So unbranded and unbranded market is growing in कल था ना न्यूज़ कल ही था न्यूज़पेपर में कि branded हाँ, market हाँ. is growing much faster Increasing. than the rural market. हाँ, हाँ. सर ऑल्सो आज वो एफएमसीजी में भी तो वही सेम डेटा ही था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दिस ट्रैक्टर, क्योंकि कल भी हम हाँ, एफएमसीजी में ही किए थे. सो correct. एंड डेटाज हाँ आर same लाइक ही आई था. हैव, हाँ सेम ही था, लाइक 6.9% ग्रोथ हुआ एंड वो सब. तो Correct. yeah. Okay. Also, sir, I also want to add some point in the lab-grown diamond thing. हम्म. तो सर ऐसा हो सकता है क्या, लाइक द लैब ग्रोन डायमंड की, जैसे कि वो तो लाइक एक पॉइंट है कि वो सेम डायमंड जैसा ही है एंड उसका प्राइसेस वैसा है, लेकिन सेम ऐसा कुछ कुछ ब्रांड्स है, जैसे श्रद्धा कपूर का एक है पल्मोनास बोल के, तो वो इज लाइक दे यूज 18 कैरेट गोल्ड. सो लाइक this can cater to the market, like जैसे we women feels like that एक्चुअल डायमंड्स जो है एंड जो एक्चुअल ऑर्नामेंट्स है वो तो लाइक हम लोग रिचुअल्स में पहन सकते हैं, बट फॉर डेली वेयर ये जो कि लाइक ऑफिस गोइंग या फिर कॉलेज जा रहे हैं, सो उसमें थोड़ा सा लाइक दे प्रेफर का मतलब लेस बजट वाला ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट, सो इट कैन केटर टू दैट मार्केट, राइट, लाइक द फॉल्स ज्वेलरी मार्केट. हाँ, So yes, वो it is still small to say. मतलब I am not into jewelry, so मुझे इतना समझता नहीं है. Nor now we get the data कि कितने ज्वेलरीज बेचे हैं, कितने के प्राइस है. अनब्रांडेड भी अच्छा. काफी सारे हैं इसमें. हम्म. So it's a segment to सर look at. मेरा और कुछ सर नहीं. मेरा दोस्त है, वो मुंबई के जवेरी बाजार में उसका होलसेल का बिजनेस है गोल्ड का. वो भी बोल रहा था हाँ. कि गोल्ड का इतना प्राइसेस बढ़ चुका है, तो जो हम्म. ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट टाइप्स के थे ना, उसकी डिमांड बहुत कम हो चुकी है. अभी रोज गोल्ड जिसमें फिफ्टी हम्म. परसेंट कॉपर होता है, और वाइट ये गोल्ड. 18 कैरेट और ये लोअर कैरेट वाले Lower ज्यादा price. प्रिफर कर रहे हैं लोग, क्योंकि हाँ, ज्वेलरी तो correct. सर फिर अभी तो 1.5 लाख के आसपास तो बन के आएगा, अगर आपको सिर्फ 1 तोला भी लेना है तो. सॉरी, हाँ, 1 तोला भी लेना है तो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है. उसपे से ये मेकिंग चार्ज, जीएसटी वगैरह सब ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इसके लिए. अभी मतलब वही ग्रो हो रहा है डिमांड. अभी टाइटन ये लैब ग्रोन डिमांड ना, अभिषेक करके जो था उसने मेरे को काफी टाइम पहले भी बोला था कि ये डिमांड इसमें बढ़ रहा है. बट फिर अभी टाइटन भी आया है, बट काफी हाँ. छोटा है मार्केट, बट ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग फास्ट. सी एट द एंड यू नीड टू हैव चैनल चेक्स कि क्यों ग्रो हो रहा है, क्या ग्रो हो रहा है. तो तुमको अगर इतना डेटा है तो बात करो. डेटा नहीं है, क्योंकि इसका डेटा नहीं मिलता, मुझे भी पता है, डेटा मिलता नहीं. तो फिर उस पर बात करोगे तो अननेसेसरी कोई सामने वाला तुमको और पूछेगा. अभी इसमें अनब्रांडेड भी लोग पता नहीं कितने लोग हैं इसमें. तो अनब्रांडेड ही ज्यादा है इसमें. हाँ, वही इसमें हम्म. ज्वेलरी में अनब्रांडेड ही है ना, सिर्फ टाइटन छोड़ा और तो कोई है ही नहीं ऐसे. नहीं ऐसा तो सर एक और चीज, ये वाला जो ट्रैक्टर वाला सेगमेंट है, ये क्या हम वो जैसे लाइक हैचबैक सीडान वो सब में तो ऐसे ही करके एक अलग सेगमेंट करके डाल सकते थे वो रीजन हाँ, वाला एक जी. ट्रैक्टर का ही अलग से पूरा ओके. पूरा ट्रैक्टर तो सेगमेंट ही उसमें उसमें अलग नहीं, हैचबैक इसमें नहीं, सीधा ट्रैक्टर ही है उसमें, और कुछ अलग है नहीं. ओके ओके, मतलब सर अच्छा तो फिर ट्रैक्टर वो का डेटा किधर से मिलेगा हम लोग को, ऑटो पंडित में? क्या हुआ? नहीं, वो डेटा नहीं, ट्रैक्टर ये का. देना इधर का ही डेटा, यही डेटा. अच्छा, इससे ठीक है. जस्ट दिस सब दिया था कि इंक्रीजिंग फ्रॉम मार्केट शेयर फ्रॉम 23% टू 20 इन द प्रीवियस ईयर. मतलब ये सिर्फ अपडेट के लिए बोल रहा था मैं कि अगर लिखना है तो डेटा तो मिलता नहीं है इसका. ये सिर्फ आया है न्यूज़पेपर में इसके लिए, और कुछ नहीं. ठीक है.
सर तो रिपोर्ट्स जैसे कि हम आपको सेंड किए हैं तो एक बार आप हम्म। देख लेंगे क्या कि हाँ मैं देखता मतलब हूँ कॉल के बाद हाँ हाँ खोला है एंड में मैंने यहाँ पे तो तुम्हारा। जरूरत है कि नहीं। हाँ हाँ यस तुम्हारा अब्दुल का ओके खोला है मैंने। ओके ओके सर। सर मैंने अब्दुल मेरा भी दिया है आपको, तुमने कब भेजा? December 25 का भेजा दिसंबर आपको। का, अच्छा ओके मैं तुम्हारा देख लिया। ओके हर्ष तुमने जो न्यूज़ लिखा है हर्ष दैट न्यूज़ इज नॉट रेलेवेंट हर्ष। Yes, sir. मतलब क्यों लिखा तुमने? ठीक है बोलो वो न्यूज़ ओके Okay, sir. जो लिखा। Good. Yeah. So, my news is about gold jewelry companies. They have reported its Q3 FY26 business updates in the last 2 days. They have not released its actual revenue numbers, but only growth percentages. So, to start with, second, Senco Gold Company, whose share price surged the most, which is around 25% in last 20 days, reported the highest growth in its revenue of 51% YOY, and its 12 months revenue also reached 8,000 crores. Other large players such as Titan and Kalyan Jewelers also witnessed strong growth in its jewelry segment of 41% and 42% YOY respectively. Titans and Kalyan Jewelers international revenue has also seen a growth YOY basis, and these companies have also focused on its expansion of stores. To conclude, the Q3 quarter was supported by festive and wedding season, and there is not only a robust demand in ornaments, but also increased investors' interest in purchasing gold. And management of these companies and analysts also expect value-led growth to persist and demand to remain resilient in the fourth quarter as well. That's all, sir. ओके फाइन मतलब जैसे एन अपडेट क्योंकि इस पे कोई रिसर्च है नहीं ना हमारे पास इसके लिए मैंने बोला कि हाँ सर, ठीक है बिकॉज सर आई चोज दिस बिकॉज ये सब प्रॉपर रिटेल बिजनेस है एंड प्रॉपर B2C बिजनेस है. सो हाँ मेरा अभी थोड़ा रिसर्च इस पे इनकम्प्लीट है, फुल्ली इन डेप्थ में गया नहीं हो. सो आई नहीं थॉट दिस वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट टू स्टार्ट द रिसर्च. इसमें क्या प्रॉब्लम है ना व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस कितना गोल्ड बेचा कितने ऑर्नामेंट्स बेचे कौन लेते हैं कितने टाइप्स के ऑर्नामेंट्स होते हैं अभी से शादी में तो कहाँ से बेचे हैं कल्याण ज्वेलर्स कहाँ पे है टाइटन कहाँ पे है उसका शोरूम फिर ये त्रिभुवन दास भी है भीम जी भी है काफी लोकल प्लेयर्स भी है तो इसमें क्या है कि अभी स्पेसिफिक बोलूँ तो गोल्ड प्राइस बढ़े इसके लिए सबके प्राइसेस बढ़े एंड नो क्या वेडिंग सीजन बढ़े तो बस इसमें रिसर्च करने के लिए कुछ है नहीं दूसरा ओके सर, बट मतलब सर तुम जो बोलो कि अभी रेवेन्यू है अगर सिर्फ ये क्वार्टर को ही मैं इग्नोर करूँ, सो ओवरऑल रेवेन्यू सर ऑन ईयरली बेसिस वो भी सर इंक्रीज हो रहा है. अगर हाँ फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन को मैं हटा दूँ, हाँ सो बट वो भी इंक्रीज हो रहा है, सो वो रीजन भी मुझे फाइंड आउट करना है. सो मैं हाँ वो बिकॉज बिकॉज यू नो अनब्रांडेड से ब्रांडेड जा रहे हैं हम ऐसे ही हो रहा है हम्म तो इसमें मतलब क्या है गोल्ड व्हाई देयर इज व्हाई रिफ्रेन फ्रॉम दिस सेक्टर कि इसमें ज्यादा रिसर्च के लिए कुछ स्कोप नहीं है राइट. मतलब तुम अभी क्या अभी बता मेरे को त्रिभुवन दास के और कल्याण ज्वेलर्स के ज्वेलरी में क्या फर्क है पता है टाइटन यस के वो इसमें क्या फर्क है प्रोडक्ट, यस सर सिमिलर ही है वो प्रोडक्ट्स इन सिमिलर है डेप्थ हाँ में बाकी है रिसर्च. तो सो वही है तो जिस जिस अभी है ना ये कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस हो गया मतलब अभी तुम बोलोगे मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगता है उसका डिजाइन अच्छा नहीं लगता है अभी है तो आखिर गोल्ड ही ना घूम फिर के राइट तो सर. हाँ इसमें सर, एक्चुअली पूरा डिजाइन पे ही बेसिस है ना ये बिजनेस, हाँ क्योंकि और गोल्ड. डिजाइन हमको नहीं पता ना तुमको थोड़ी पता क्या डिजाइन आते हैं हाँ ना एग्जैक्टली. ना किधर मिलेंगे ना वेबसाइट पे भी तुमको मिलेंगे डिजाइन क्या आते हैं राइट राइट तो राइट. फिर अगर मैं तुमको बोलूँ वाई कल्याण इज गुड एंड वाई टाइटन इज नॉट तो तुम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे हम्म तो इसका रिसर्च कैसे होता है दिस रिसर्च इज ऑन द इकोनॉमी कि कुछ वेडिंग सीजन आ गया है या कुछ डिमांड बढ़ गया है गोल्ड प्राइसेस कम हो गए या गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए वैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा लोगों ने और प्री बाइंग किया होगा या फिर इन्होंने जो पहले से गोल्ड लेके रखे थे तो इनको ऐसे ही फायदा हो गया है कि गोल्ड का फायदा हो गया कि उनका पहले से इन्वेंट्री था तो ये सब काफी माइन्यूट डिटेल्स आ गए जहाँ पे इंडस्ट्री छोड़ के हम सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं ओके. इसके लिए और कुछ नहीं मतलब करने को कुछ नहीं बट इंटरव्यू में कुछ काम ही नहीं है ये सब का कि तो पहला सर क्वेश्चन ये फॉर पूछूंगा डिस्टिंग्विश कल्याण और टाइटन में फर्क क्या है वही. कल्याण का शोरूम है और टाइटन का शोरूम है मैं किसका शोरूम में जाऊँ और क्यों तुमको मैं पूछूं किसके शोरूम में जाओ तुम बोलोगे सर जिसमें डिजाइन अच्छा लगेगा उसमें जाऊंगा मैं प्राइस तो सेम ही है दोनों के पास हाँ यस सर सिमिलर है. गोल्ड ही है हाँ तुम बोलेगा एक मेकिंग चार्ज कम लगा रहा है दूसरा मेकिंग चार्ज लगा रहा है यस सर, सो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू सर उनका मेकिंग चार्जेस पे ही रहता है. हाँ
फिर तुम क्या रिसर्च करोगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि रिसर्च क्या करोगे इस पर। ओके सो सर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव को अगर कंसीडर करें तो सर आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर्स होना चाहिए? एक ऑटोमोबाइल हो गया, टूरिज्म हो गया। ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, एफएमसीजी और रिटेल में फैशन और वो सब आ रहा है, फैशन अलग है, ओके फुटवेयर भी आया उसमें, बट अभी तक कुछ न्यूज आते नहीं है वो सब इसके। एफएमसीजी अभी क्यों ना, व्हाई वी हैव टू ना ऑलवेज व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यूज, ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम फ्रेशर हो, कि बस एक सेक्टर मैंने बोल दिया इसलिए तुम रिसर्च कर रहे हो। पेपर में रोज क्या आ रहा है, एंड आई एम प्रूविंग यू ना कि रोज आ रहा है पेपर में। मैं रोज रोज सामने रखता हूँ कि देखो ये आया न्यूज में, वो आया, कोई ना कोई ऑटोमोबाइल का आ रहा है, कोई ना कोई अभी ट्रैक्टर का आज आया, क्योंकि रूरल सेगमेंट में ग्रो हो रहा है, रूरल इज लिंक टू एफएमसीजी। फर्स्ट मैंने बोला जो ठंडी का था, वो ठंडी इज अगेन लिंक टू होटल इंडस्ट्री, राइट इट इज ऑल्सो लिंक टू एफएमसीजी। तो सब आसपास जो करे उसमें रिसर्च करना इज बेटर देन डूइंग समथिंग वहाँ पे तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ऐसा है। अभी इमामी का नाम क्यों आया उसमें? एफएमसीजी का था न्यूज, बट इमामी का नाम था उसमें, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक बिकता है सदा। फिर ओके रिटेल में भी वी मार्ट का नाम था, बाकी इसका नाम क्यों नहीं आया? जैसे अभी डीमार्ट का नाम, क्योंकि डीमार्ट नहीं बिकता है विंटरवेयर, ऐसा है। ओके Okay, so it should look like you are working with someone. It should not look like कि तुम ना सिर्फ यार किसी ने बोला है इसलिए तुम मॉडल बना रहे हो, तो वो तो बाकी लोग भी कर ही रहे ना। तुमको मैं वीडियोस दे दूँ, ये लो वीडियो से देख लेना, उसे जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा है। ओके ओके सर गॉट इट। ऐसा नहीं सर कि तुमको मेरा एक डाउट भी था सर। हाँ मेरे को सर एस्टिमेट्स जो होते हैं जो बाय बिग ब्रोकर हाउसेस, सो हाँ सर वो कौन से बेसिस पे होते हैं, मुझे वो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। सो क्योंकि सर मैं रिसेंटली अभी 2 इंस्टेंसेस नोटिस किए। जैसे सर कल ट्रेंट का था, ट्रेंट ने भी अपने नंबर्स रिवील हाँ किए। सो सर उसका सिर्फ एकदम मिनिमम ग्रोथ आया रेवेन्यू में, 17% हाँ आया। बट हाँ सर मार्केट सेंटिमेंट्स ने एस्टिमेट्स क्रिएट किया था कि स्ट्रॉन्ग वो ग्रोथ आने वाला है। हाँ बट सर वो एस्टिमेट्स रीच नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। सो शेयर्स एक ही दिन में 9% फॉल हो गए, आई थिंक येस्टरडे और डे हाँ बिफोर येस्टरडे। हाँ एंड ऑल्सो सर आईएचसीएल के रिगार्डिंग मैंने एक ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ा कि मॉर्गन स्टैनली उन्होंने भी अपना जो आईएचसीएल स्टॉक है ओवरवेट से डाउनग्रेड किया है, कि हाँ सेइंग कि जो उनका रेफ पार है वो पोटेंशियल उसमें बहुत कम है अपसाइड का करेक्ट। इंक्रीज हाँ होने का। सो सर ये मुझे पूछना था कि एस्टिमेट्स कौन से बेसिस पे होते हैं? सी एस्टिमेट्स के लिए तुमको पहले बिजनेस समझना होता है। अभी एग्जांपल अगर होटल की बात करें, हम्म तो होटल में हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि रेफ पार इनटू ऑक्यूपेंसी। ओके, रेफ पार इनटू, तो अभी रेफ पार हिस्टोरिकली कितना था, कितने से बढ़ रहा है, तो वो ओके एक हिस्टोरिकल रेट होता है उसका। फिर उसके ओके बाद एवरेज ये एडीआर इज एवरेज डेली रेट्स। अभी डेली हम्म रेट से ताज अगर होटल खोल रहा है, एक नया होटल खोल रहा है विच इज मच एक्सपेंसिवर, या फिर उसके जो कीज है वो एकदम प्राइम लोकेशन पे, जैसे मुंबई में वो खोल रहा है बांद्रा में, तो तुमको वो एक्सपेक्ट लेना कि अभी इसका एडीआर ना एवरेज एडीआर 15,000 है, बट अभी 16,000 हो सकता है 5% से, बिकॉज ऑफ द बांद्रा कमिंग इन। ओके या फिर कम भी हो सकता है कि उसने कोई जिंजर के ज्यादा खोल दिए, तो जिंजर के ज्यादा वो तुम्हारा एस्टिमेशन होगी ऐसे कम ही होगा। तो वो परसेंटेज तो ठीक है, यू कैन परसेंटेज प्ले ऑन इट, बट वो अभी इसमें क्या आया, ट्रेंड में क्या आया, ट्रेंड बोल रहा है कि लास्ट सेम स्टोर ग्रोथ, उसका सेम स्टोर ग्रोथ होता है। मतलब लेट्स से वो एक 100 स्क्वायर फीट में 100 रुपए का सेल कर रहा है, ठीक है, तभी उसने अगर 100 खोले और, तो और 100 का बढ़ना चाहिए ना ये राइट असम्पशन होता है, बट वो बढ़ा ही नहीं, यस सर वो कम हुआ, तो ये असम्पशन होता है। एनालिस्ट का प्रोजेक्शन ये होता है कि 100 ओके स्क्वायर फीट में इतना साल से कर रहा है, तो इसका ये इतना ये साल इतना करना चाहिए। और अगर वो ओके नहीं हुआ तो उसमें एस्टिमेशंस क्या होता है कि कितना इसका कितने स्टोर्स खोलने वाले हैं, कितने स्टोर्स खुले हैं क्वार्टरली, पेपर में आता रहता है ना वो न्यूज, ये खोला वो खोला, तो यस इसके लिए ध्यान रखना होता है। ओके अभी जैसे मारुति ने कोई अभी वो विटरस लॉन्च की है उसने, तो विटरस मुझे पता है 22 लाख की आती है, तो उसका तो एवरेज प्राइस पर यूनिट बढ़ना चाहिए अगर विटरस बिके तो बिके तो कैसे समझेगा वो, हर हर मंथली डेटा आता है ऑटो का कि सर ये बेच रहा है, इसका मतलब अभी कितना वो तुम नहीं कर सकते, बट उससे तो ज्यादा बढ़ेगा ऐसा है। फिर ओके अगर डेटा आ गया कि इसने स्विफ्ट ज्यादा बेचा है ये महीने में, या कोई लोअर वेरिएंट बेचा, तो पता है कि इसका एवरेज कम होने वाला है। हाँ, अगर वो गलती से ज्यादा हो गया तो फिर हम समझते हैं हाँ इट बीट एस्टिमेट्स या मिस एस्टिमेट्स। तो ऐसा वो पूरा बिजनेस समझना होता है। And फिर ओके आखिर एस्टिमेट्स ही होता है, देन 10% 5% यही ग्रोथ है, बट किस पे 10%, किस पे 5%, और ओके बढ़ने वाला है घटने वाला है, हमेशा एस्टिमेशन बढ़ने वाले नहीं होते, घटने वाले भी होते हैं, ओके ऐसा है।
Okay, sir. Got it. Thank you. Okay. That is why research वो experience matter करता है research में. It is not कि तुमको मैंने आज बता दिया ऐसे estimates होता है. मैं भी नहीं बोल पाऊंगा. तुम बोलोगे सर आप बताओ एनालिस्ट हो टाइटन का estimate करो. मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने Yes. ट्रैक ही नहीं किया है वो. Okay, sir. Yeah. ओके अब्दुल लास्ट न्यूज ओके. तो तुमने इसका क्यों न्यूज लगा मदर कंज्यूमिंग के इस पे क्या रिलेटेड है इसका अब्दुल. यस सर. कहाँ पे था ये न्यूज. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था. अच्छा या गो अहेड. अब्दुल गो अहेड. Yeah. So, good morning, everyone. So, my news is regarding the auto component sector. So, the government is planning to infuse INR 50 billion incentive to auto part sector to accelerate the domestic production, thereby reducing the dependency. Basically, the objective is to raise India's global auto parts share by 500 basis points to 8% in the medium term. So the context is that India faces 10% cost disadvantage versus China, and the manufacturing equipment cost is also up to 20% higher. This is generally because of supply chain inefficiencies, higher raw material and equipment cost, and weak precision technology in India. So this scheme is basically the need of the hour because the domestic auto component industry is valued at just 3.8% of the global market of $2.1 trillion and exports sit at 30% of total global demand, which is of $700 billion in 2022. But the silver lining is that by 2030, the industry is expected to grow by 80% to $145 billion and exports is expected to grow by 200% to $60 billion with a trade surplus of $25 billion. So the conclusion is that the scheme is looking promising to strengthen the financials of these auto components companies like Bharat Forge, Bosch, Endurance Technology. Also, what we can expect is that for the Indian OEMs, now they won't have to depend on the imports, so they will be like saved from any supply chain disruptions that happen globally. Also, we can expect their EBITDA margins to improve since the cost of the raw materials will decrease with this. Thank you. ठीक है आपने प्रेजेंट तो अच्छे से किया बट करो क्या मैं न्यूज का. ठीक है मतलब इट इज अ गुड न्यूज. वी आर नॉट फॉलोइंग द सेक्टर हम फॉलो कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर रहा है. इससे फायदा क्या होगा एट द एंड. इनको तो हो गया. सर जो इंडियन OEMs हैं सर उनके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे. इंप्रूव हो जाएंगे. ओके यस. सो तुमको पता होना चाहिए कि मिंडा का टॉप ये कौन है सेगमेंट कौन है या मिंडा क्या बिकती है किसको ज्यादा बिकती है. हु इज इज कस्टमर कौन सा है उसका. राइट सर. ठीक है मतलब दिस इज लॉन्ग टर्म न्यूज कि ऐसा ऐसा हो रहा है. इट इज गुड. ये भी लिखा ना उसने. यस सर. सिमिलर पार्ट्स कौन से लिखा है. पार्ट्स के नाम दिए क्या नहीं. तो यस सर. बनाता है. हेलो सर. हेलो. यस अविनाश यार. हाँ विराज. यस सर मैंने भी सेम ही न्यूज लिखा था मतलब. हाँ अच्छा. वही मतलब मुझे मतलब- रीजन नहीं समझा तुम दोनों का कि व्हाई व्हाट वाज द रीजन ऑफ राइटिंग दिस न्यूज. इसलिए लिखा था कि जब ये कैपिटल हेवी इंडस्ट्रीज है मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनका कैपिटल बर्डन तो कम हो जाएगा. उसकी वजह से उनका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स जैसे कि आरओसी बीटा मार्जिन्स और उनके कैश फ्लोज भी कंसिस्टेंटली ग्रो होंगे. तो एक अच्छा सेक्टर और उनके कंपनीज है हमें फ्यूचर में देखने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए. सी अब्दुल और अविनाश द प्रॉब्लम है तुम जो बोल रहे हो ना आरओसी ग्रो होगा ये होगा. दिस इज रेगुलर फाइनेंस. ये सबको पता है. ये ओके करेगा सर. तो कोई भी न्यूज पढ़े ना सबको पता चलेगा कि ऐसा ऐसे आरओसी इंक्रीज होगा ये होगा. वी एज एन अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तुम जैसे मेरे कोई दोस्त के पास गए इंटरव्यू को वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं ओके करेगा. ये तो बेसिक रिसर्च है यस सर. कि ऐसा होगा तो ये होगा. मतलब तुम वही बोल रहे हो कि सेल्स ग्रो होगा तो आरओसी ग्रो होगा. गवर्नमेंट बूस्ट मिलेगा तो क्या उनका कॉस्ट कम होगा. तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस ना. क्या है मतलब तुम वैसे बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने मुझे ये दिया इंसेंटिव्स दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा. तो क्वाइट ऑब्वियस इंसेंटिव दिया तो प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है. ओके सर. मेरा क्वेश्चन है अभी इसमें से अभी इफ आई गो मोर स्पेसिफिक बॉश और भारत फोर्ज क्या फर्क है दोनों में दोनों के प्रोडक्ट्स में. सर बॉश का प्रोडक्ट जो मिक्स है वो ज्यादा बड़ा है. वो सब में है. वो मतलब कि जो
वायरिंग्स वगैरह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी करता है, जो डाइस वगैरह होती हैं वो भी करता है, सब कुछ है। भारत हाँ, फोर्ज मोस्टली फोकस करता है डाइस पर ही। अच्छा, और बॉस का कॉम्पिटिटर कौन है? सर बॉश तो ग्लोबल लीडर है सर ऐसे फिलहाल। थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कॉम्पिटिटर होगा ना ग्लोबल लीडर का है तो। कॉम्पिटिटर सर ये है, क्या है नीचे ये था, इसका नाम है सर शेफलर। शेफलर, शेफलर हाँ। उसका कॉम्पिटिटर है। तो क्या फर्क है दोनों के प्रोडक्ट्स में, बॉश और शेफलर? सर प्रोडक्ट्स तो सेम ही है सर। हाँ, तो वही ना, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर तुम इतना सब स्टॉक्स में बता रहे हो, मैं मुझे इसमें से एक चूज करो एंड वाई, तो आंसर किधर है तुम्हारे वो पास? भी है सर। तो आंसर किधर है तो तुम्हारे सर पास? मतलब एक डाउट है कि मतलब अभी समझो हम एक स्पेसिफिक न्यूज ले रहे हैं दिन डेली के लिए, तो उसे मतलब अप्रोच कैसे करें, मतलब एनालिसिस कैसे कर सकते हैं उस पर? नहीं, तो कंपनी, मैं पहले बना, पहले तो वो कंपनी पे न्यूज लो जिसके प्रोडक्ट्स पता हो, कॉम्पिटिटर्स पता हो। ओके पहले तो वो एटलीस्ट ट्राई डूइंग इट, वो कंपनीज पे। ओके। ताकि क्या होगा कि हाँ। बातचीत करने में तो इजी होगा कम से कम। एनालिसिस छोड़ दो, हम्म। एटलीस्ट यू कैन टॉक ऑन थिंग्स कि अरे यार ये ग्रो हो रहा है, ओके। ये ग्रो नहीं हो रहा है। गाइस, वन सेकंड, वन सेकंड। तो सॉरी, या हाँ, सो अभी ना ओके वही सर। मैं बोल रहा था कि तो एक कंपनी विच इज इजी टू टॉक अबाउट। ओके। अभी वो ओम ने भी लिया, उसका हर्ष ने भी लिया था इसके बारे में, ज्वेलरी के बारे हम्म। में। पता है ज्वेलरी बल्क, हाँ। पर वही फर्क क्या है दोनों में? बिकॉज ओके सर। इतना तुम सब लिख रहे हो, तो ना इट शुड मेक एन इम्पैक्ट इन द इंटरव्यूज। कि तुम ना, कैसा ओके। होता है, विल यू हैव एन एनालिस्ट वर्क। हम ना, मैंने लास्ट 8 साल में सिर्फ फार्मा के बारे में ही पढ़ा था, ओनली फार्मा। ओके। हाँ, बाकी भी पढ़े थे, ऑटो भी था, आईटी भी था, बट वो सेकेंडरी था। कि मुझे अगर हाँ। कोई पूछे, वो भी था, तो ऐसा नहीं कहा मुझे कुछ नहीं आने का, उसके बारे में कुछ पता, तो मुझे पता तो था। जैसे ऑटो नंबर्स में करता हूँ, मुझे ऑटो नंबर्स पता था, उसका मैं हम्म। ट्रैक रखने का। मैं आईटी सेक्टर ट्रैक करने का, तो आईटी सेक्टर का मुझे नंबर्स पता था। और भी एक दो सेक्टर से जो सॉफ्ट कवरेज बोलते हैं उसको। तो हाँ। ये सब अगर तुम बोल रहे हो, दिस शुड बी ए सॉफ्ट कवरेज, कि तुमको ठीक है पता है इसके बारे में, बिकॉज दिस इज लिंक टू द ऑटो सेक्टर। जैसे अब्दुल ने बोला कि हाँ। इसके इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट होके ऑटोमोबाइल के मार्जिन बढ़ेंगे, तो फाइन, यू शुड हैव एन आई ऑन दिस कि क्या चल रहा है। बट डोंट मेक इट अ गो थ्रू वन, क्योंकि आज लेट्स से यू आर गिविंग मी एन इंटरव्यू, तो तुम्हारा ये न्यूज नहीं आना चाहिए उसमें। तुम कोई ऑटो का न्यूज बोलो, ओके सर। उसके बाद ये न्यूज लिंक करो कि सर ऐसा भी आया था उसके बारे में, तो ये पुश के बारे, इसके वजह से उनका मार्जिन कम हो सकता है, और हाँ। बॉश के राइट इतने सर। सारे प्रोडक्ट्स है, तो ऐसा होता है। और इट सर शुड नेवर मतलब बी अ गो थ्रू कंपनी। ओके, तो एनालाइज करते समय या न्यूज को देखते समय हमें कौन सी चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए ज्यादा? क्या एनालाइज करते हो? मतलब कंपनी फेवरेबल हो, मतलब हमें उनके प्रोडक्ट्स पता हो, कॉम्पिटिटर्स पता हो, वैसा? पहले तो उतना तो बोलो, जो पेपर में आते रहते ना, हाँ। उसमें क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या रीजन। अभी इमामी का था, वो क्यों नहीं लिखा तुमने? इमामी का भी न्यूज था ना, डाबर का भी ओके था। सर। 7 प्लस खाते हो ना तुम? हाँ सर। हाँ, तो मतलब तुम नहीं खाते होगे, बट पता है ना, लोग खाते हैं आसपास, मिलता है, हाँ हाँ दिखता है। हाँ। हाँ, 7 प्लस था, इमामी के प्रोडक्ट्स थे, वो क्यों नहीं लिखा हम्म। फिर? वो भी तो था न्यूज। ओके, ओके। ओके। सो गाइस, अब्दुल एंड आई हैव योर अब्दुल एंड अंकिता, तो मेरा रिपोर्ट है। सो अब्दुल, प्रेजेंटेशन इज फाइन। ओके, यार मैंने भी अपना रिपोर्ट भेजा है लेमन ट्री का, एक छोटा सा, आप अभी एक बार भेजा ना, देखना वो ना। मैं कल देखता हूँ। अभी मैं इन दोनों का देखता हूँ, ठीक है, मैं नो अभी भेजा इश्यूज। ना, इन का ऑलरेडी किया है मैंने। सो अब्दुल, दिस लुक्स बेटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा मुझे, बट इसमें तुम थोड़े क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट हम्म। है 35%। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने 4 लाइन ही पढ़ने वाला हूँ पहले पेज पे, तो फ्रंट पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। ऑटोमोबाइल क्या हुआ है पहले, तो ऑटोमोबाइल इंडेक्स तुमने जो लिखा ना 29%, ये क्यों ग्रो हम्म। हुआ है? ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्रीज 29% ईयर ऑन ईयर, लेड बाय, अच्छा हाँ हाँ। लेड बाय क्या?
अभी थ्री व्हीलर्स तो नहीं है, क्योंकि वो हार्डली इट मैटर्स ना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। थ्री व्हीलर्स हार्डली इट कंट्रीब्यूट 1.5%, सॉरी 5%। तो मेजरली क्या है, टू व्हीलर्स, ठीक है, टू व्हीलर, सेकंड इज फोर व्हीलर्स। तो मेजरली तुम्हारा घूम फिर के इसी दोनों पे बात होनी चाहिए। थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स बहुत छोटे हैं। ठीक है अगर तुमको स्पेसिफिक एक्सपोर्ट लिखना है तो एक्सपोर्ट लिखो कि उसमें एक्सपोर्ट्स में क्या हो गया। सो सर, वो इंडस्ट्री, उससे मैंने सिर्फ एक एन आई कैचिंग हेडिंग के तौर पर लिखा था, बाकी फिर इंडस्ट्री ओवरव्यू में मतलब वो है कि 22.9% ग्रोथ है, तो फ्यूल्ड बाय हाँ व्हाट? 21%। हाँ तो अभी नहीं, तो ये सब ना हेडिंग में आता है। फिर जब तुम आते हो इंडस्ट्री में, 21% टू व्हीलर्स में ग्रोथ क्यों हुआ है, तो दो पैराग्राफ हो गए तुम्हारे। मतलब हेडिंग आ गया तो क्या, इंडस्ट्री ग्रो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो 22% लेड बाय एक्सटेंडेड ग्रोथ इन टू व्हीलर सेगमेंट, एक ही लिखना है, ऊपर हेडिंग है ना वो। हम्म, फिर नीचे तो टू व्हीलर सेगमेंट में क्या हुआ है, कितने हुए थे, कितने तुम यहाँ पे लिख सकते हो, कितने उसके यूनिट सेल हो गए टू व्हीलर्स के। अभी टू व्हीलर्स में भी तुम मोटरसाइकिल स्कूटर्स तोड़ सकते हो ना। या फिर ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना ही है इंडस्ट्री ग्रो बाय टू व्हीलर, क्यों क्यों ग्रो हुआ, क्या रीजन के वजह से ग्रो हुआ। फिर फोर सर ये व्हीलर, नीचे क्या अच्छा, रीजन तो की वजह सर से वो ग्रो भी हुआ। यहाँ पर लिखूं, क्योंकि नीचे टू व्हीलर सेगमेंट में मैंने उसका ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो टू व्हीलर सेगमेंट ना, अभी टू व्हीलर में 21%, अभी इसमें तुमको पता है ऑटो स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स आते हैं, तो इसमें वो तोड़ो ना तुम। पैसेंजर व्हीकल्स में जब लिखोगे तो पैसेंजर व्हीकल्स में, एग्जैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स में किसका ग्रोथ हुआ है, कौन से सेगमेंट का ग्रोथ हुआ है, हम्म समझ रहे हो? कि जब हम सेगमेंट्स बात करें, सेगमेंट में हम और तोड़ते हैं, ऐसा है कि मोटरसाइकिल स्कूटर्स में क्या है, फिर मोटरसाइकिल हमको एग्जांपल में बोलता मोटरसाइकिल्स में ग्रो हुआ है, तो तुमको मोटरसाइकिल्स ग्रो है तो तुमको हीरो से ही चालू करना है कि हीरो में ऐसा हुआ है। ये ठीक है, दिस इज फाइन, ये ठीक है। और जब तुम ये भी ठीक है, ब्रांड वाइज सेल्स, दिस इज फाइन। व्हेन इट कम्स अबाउट हीरो, तो हीरो में क्या हुआ वो सब ठीक है, हीरो का इज परफेक्ट, बट मेरा फ्रंट पेज की बात करो, फ्रंट पेज पे मुझे वही दिखना चाहिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ है। करेक्ट, मैं बोला टू व्हीलर्स ग्रो हुआ, तो टू व्हीलर्स में चालू करो, टू व्हीलर्स में ग्रो, टू व्हीलर्स में क्या ग्रो हुआ है स्पेसिफिक। यहाँ पे भी तुम कंपनी का नाम तो लिख ही सकते हो ना ऊपर, कौन से कंपनी में हुआ है। हम्म ओके, मतलब सोचो ना, ये मैं एक फ्रंट पेज पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फ्रंट पेज में तुम मुझे क्या बता सकते हो, शॉर्ट में, वो भी 2 से 3 पैराग्राफ में। मतलब 22% में सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है टू व्हीलर, टू व्हीलर में सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है कौन सा कंपनी, उतना तक तो ठीक है अभी, ठीक है। ठीक है सेम सर। वे फोर व्हीलर्स ग्रोथ हुआ है, तो कौन से कंपनी में या कौन सा सेगमेंट अगर स्पेसिफिक लिखा है तो कौन से सेगमेंट में ग्रो हुआ है, एंड व्हाट हैज लेड टू द ग्रोथ, शुड कम इन 1 to 3 पैराग्राफ्स। हाँ, अगर एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स बेटर, तो और उसको तुम डिफाइन कर दो कि एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ है या डोमेस्टिक में क्या हुआ। तो क्योंकि इंडस्ट्री रिपोर्ट है ना, तो इंडस्ट्री में थोड़ा लिखना होना होता है, एंड फिर तुम टू हम्म व्हीलर्स में वापस चलोगे, टू व्हीलर्स ग्रो बाय 21% स्पेसिफिक, 21% फ्यूल बाय 38% ग्रोथ इन स्कूटर सेगमेंट। अभी देखो स्कूटर है तो फिर मोटरसाइकिल्स क्यों नहीं है, तो यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल का ब्रेकअप क्यों नहीं है। अच्छा, तो तुमने ऐसा किया है, नहीं नहीं, मेक श्योर इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री में सब एक साथ आ जाए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल और फोर व्हीलर, सॉरी, टू व्हीलर, स्टार्टिंग विद टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स, फिर थ्री व्हीलर और कमर्शियल, ये इसमें आना चाहिए तुम्हारे 4 पॉइंट्स में, ये जो डेटा लिखा है ना। बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट योर रिपोर्ट, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, ओके 22% ग्रोथ हुआ है, रीजंस क्या थे। ठीक है, वो टू व्हीलर सेगमेंट और थ्री व्हीलर सेगमेंट उसमें वैसे करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सेगमेंट लिखना 3-4 पैराग्राफ जो भी होंगे, पैराग्राफ 1-2-3 ही लाइन ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। थ्री व्हीलर्स में क्या हम्म कर, फिर जब टू व्हीलर में जाओगे तो टू व्हीलर में कंपनी वाइज डालना, तो इसमें एक कंपनी नाम भी आनी चाहिए फर्स्ट, कि टू व्हीलर में हम्म हाईएस्ट कौन था, फोर व्हीलर में किसने हाईएस्ट ग्रो किया है। ओके, ये तो इम्प्रोवाइज ओके कर सर। सकते हो, बाकी बनाया अच्छा है, नो डाउट इन दैट, बाकी बनाया अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, प्रेजेंटेशन भी फाइन है, वाइट स्पेसेस भी नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा चाहिए तो और कम कर सकते हो इसमें वाइट स्पेसेस। नीचे तुम हमेशा एक चार्ट डाल सकते हो ना, चाहिए तो यहाँ पे ना, वो चार्ट डाला ना हम्म निफ्टी ऑटो का, हाँ सर, वो कर देता हूँ, हाँ। वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो, हाँ, फिर ही नीचे आ सकता है यहाँ पे। सर मैंने भी भेजा ऑटोमोबाइल का। कभी भेजा तुमने? 2 दिन पहले ही भेजा था। अच्छा,
मुझे एक बार पिंग किया करो ना कि भेजा है, तो मैंने नहीं देखा, सॉरी। हाँ सर सर आप भी कर दीजिए। मैंने आपको 2 तारीख को भेजा था, उसका देखो ना एक हाँ बार। हाँ हाँ, बस एक फर्स्ट मिनट। वेक्सन तुम्हारा देखा था मैंने, 1 सेकंड। ओके अब्दुल, तुम ये थोड़ा चेंजेस करो इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री के साथ में लिखना, सो आई नो कि 2 व्हीलर 3 तुम एक साथ बात कर रहे हो, कंपनी का नाम आना चाहिए उसमें। हम्म। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब आई थिंक देयर इज नो इश्यू विद दैट। मैंने पढ़ा है, तो ये तुम एक बार विद्या मैम को प्रेजेंट करो ना, फिर देन यू कैन प्रेजेंट टू मी। अभी तो ठीक है सर, मैं करता हूँ रिप्रेजेंट। एक बार ओके विद्या सर। मैम को। अच्छा गाइस, दोज हु आर कमिंग इन द इवनिंग सेशंस नाउ, सिंस सिर्फ जीडी चल रहा है तो तुमने अभी रिपोर्ट बनाना चालू किया है, तो प्रोबेबली मेक श्योर दैट यू प्रेजेंट रिपोर्ट। विद्या मैम हमेशा पूछती है रिपोर्ट किसी को प्रेजेंट करना है तो वहां पे प्रेजेंट करो, बिकॉज द पॉइंट आई आस्क यू कि तुम प्रेजेंट करो ये रिपोर्ट। लेट्स से ऑब्वियसली आई एम नॉट रीडिंग अब्दुल्स रिपोर्ट, बट जब वो प्रेजेंट करेगा तो आई नीड टू नो कि तुमने वो बराबर प्रेजेंट किया है कि नहीं विद्या मैम को। आई विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम विद्या मैम। विद्या मैम को बोलते हैं कि आज इसने ये प्रेजेंट किया था, दैट आई कैन इम्प्रोवाइज ऑन द फाइनेंशियल पार्ट। क्योंकि मुझे वो वापस वो नहीं करना है कि तुम वापस मैं तुमको इंग्लिश ही बताओ, अरे यार इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे वापस। सर मेरा भी एक बार देख लो ना, I'm sorry, हाँ अभी जस्ट टाइम। सर मैंने भेजा अंकिता का भी रिद्धि। ओके हाँ, ना अंकिता का था ये, अंकिता तुम्हारा था ना ये। हाँ सर। सर इसमें लाइक लास्ट में जो कंसोलिडेटेड सारा डेटा जो था सैंपल में, वैसे देना मतलब पड़ेगा क्या कौन सा देना? कौन सा? मतलब लास्ट में जैसे वहां पे दिया है कंसोलिडेटेड डेटा दिया हुआ था सारा कंपनीज को लेके, तो हम वो अभी दिए नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर दिए हैं अंदर ही, तो वहां पर फिर रिपीटेशन हो जाता है डेटा। नहीं नहीं मत करो। ओके अच्छा ये ना थोड़ा और अंकिता, इतना इतना स्पेस नहीं दिखना चाहिए, बहुत स्पेस दिख रहा है बीच में। इसका ओके। देखो ना, अब्दुल का नहीं आ रहा है। अच्छा वैसे फिर हाँ हाँ, लाइंस कर दें। लाइंस भी करो, लाइंस और ये हाईलाइट्स, क्योंकि ये डजंट लुक गुड। मतलब ओके ऐसा लग रहा है कि क्या कहाँ से चालू करूँ मैं पढ़ना। ओके। ओके, एंड ये दोनों में अभी देखो, तुमने लिखा है कैटेगरी, यहाँ पे क्या कैटेगरी है ये? व्हाट आर दिस नंबर? इंडस्ट्री नंबर ना, हाँ हाँ, तो एक ये साथ तो क्यों लिखा? सेगमेंट्स। सर ये एक्चुअली टोटल सेल्स के अंदर है, तो ये एक कैटेगरी हो गया कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सेगमेंट में एक, और एक उसी का कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर अच्छा, व्हीकल वाला कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। पैसेंजर, ओके, तो थोड़ा हाँ। गैप छोड़ो दोनों में, समझना चाहिए ओ, क्या अलग अलग है। एक ओके सर, हो गया। एक हाँ इतना, एक साथ हो गया। हाँ अब्दुल इतना बट बड़ा गैप नहीं चाहिए अब्दुल, सॉरी अब्दुल, शुड नॉट बी 10 बिग गैप। इसका हेडिंग होना चाहिए क्या है, ठीक है? या फिर थोड़ा नीचे से चालू करो एक, जस्ट टू शो दैट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है ठीक सर। है, इतना बड़ा गैप नहीं होना ओके। चाहिए। सर यहाँ पे हर एक टेबल का वो कर दे क्या, हेडिंग दे दे क्या, जैसे कि ये कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स है तो कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल सेल्स ऐसे कर। नहीं टोटल सेल्स, ठीक है ठीक है, टोटल सेल्स ओके। कैटेगरी वाइज, ये ठीक है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट नहीं, ये ठीक है, दिस इज टोटली फाइन। तो मैं समझ रहा हूँ कि ना कैटेगरी में 18% ग्रोथ हुआ है, टोटल इज अच्छा हाँ, ये थोड़ा ये और डार्क कर सकते हैं ना, ये सेम हो गया ऑलमोस्ट। ओके ओके सर। ये वापस थोड़ा और ऊपर इतना, भाई इतना गैप क्यों है? आई मीन दोनों में को लग के आना चाहिए, हेडिंग है ना वो। सर कहाँ बोल रहे हो? ये जो है ना, जो तुमने किया है, हाँ ये। ब्लू है, हाँ। ब्लू है, ब्लू लाइन थोड़ा और नीचे से आना चाहिए, सी ओवर हियर, इसका कैसा है? ओके ओके। ओके हाँ ओके, समझ गया, उसके पतला कर दिया। ठीक है। ये भी यूनिट्स, वो इतना ज्यादा गैप नहीं देखना चाहिए, मतलब दिस आल्सो माइन्यूट डिटेल्स ना, प्रेजेंटेशन करते हुए ऐसा लगता है कि अरे यार इतना बेसिक चीजें क्यों नहीं समझ रहे किसी को। ओके, ओके सर। टोटल है तो टोटल को जैसे लाइंस तो करना है भाई, टोटल है तो डबल लाइन करना, ओके ओके। सेम डू लाइक दिस है ना। अच्छा अच्छा अब तो अच्छा। ये लाइंस डालने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये हाईलाइट किया है ना, लाइन से एंड में होगा, टोटल है ना। सर किसमें? ओके, इसमें इसमें लाइंस डालने की जरूरत है, तुमने ऑलरेडी हाईलाइट किया है ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये कलर से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नीचे सिर्फ एक ये सिर्फ टोटल के लिए लाइन डालना, ठीक है सर। लाइंस भी हटा दो, तो इट डजंट लुक गुड। ओके, टोटल ओवरऑल सेल्स अगेन, तुमने समझा अंकिता कैसे लिखना है ये इंडस्ट्री ओवरव्यू? हाँ 18% में क्या हुआ है, तुमने ये बड़ा चार्ट्स में नो इश्यूज, चार्ट्स आर परफेक्टली फाइन नाउ। तुम बता रहे हो, समझ रहे हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दैट्स अभी ऐसा क्यों आया पे नवंबर 25 इधर आना चाहिए ना, देखो सब यहाँ नाइस थोड़ा आया,
हाँ ये मिस्टेक हो रहा है। हाँ। ओके ओके, ये मिस हो गया तो मुझसे। फोर व्हीलर वो इंडस्ट्री जब लिखोगे तो उसमें ही लिखना फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर में एग्जैक्टली एक एक पॉइंट में क्या हुआ, मतलब आई कैन रीड इट कि जब ये 18% तुम ग्रोथ बोल रहे हो तो 18% कहाँ कहाँ पे ग्रोथ आया। हाँ स्पेसिफाई अगर तुमको कोई कंपनी का नाम डालना है कि इसके वजह से बड़ा ग्रोथ आया टू व्हीलर में, या फिर ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से आया है, अगर ये नवंबर का डेटा है तो प्रोडक्ट भी होगा, वो भी तुम डाल सकते हो, बिकॉज फ्रंट पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब समझता है कि तुम ना इतना डिटेल में तुमने रिसर्च किया है, ओके। बिकॉज नॉर्मली ये कोई पढ़ता नहीं है, दे सिर्फ प्रेजेंटेशन देखते हैं कि तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ओके सर, ये चीज ना मैंने सीवी के लिए किया है, नीचे जो सीवी वहां पे कंपनी वाइज डाल दिया था। सो नहीं नहीं, कंपनी वाइज तो ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ हाइडिंग में ही, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ अच्छा। कि एक हाँ। एक हाथ कोई, सब नहीं, एक हाथ कोई, मतलब लेट्स से अभी मैं बोल रहा हूँ कि टू व्हीलर सेल्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, टू व्हीलर हम्म सेल्स इंक्रीज बाय 16%, व्हिच वाज हम्म द लेड टू द ओवरऑल सेल्स इंक्रीज बाय 18%। सो टू व्हीलर में पहले तो क्या हुआ है, एंड विच कंपनी में कौन सा मॉडल हैज लेड द हाईएस्ट ग्रोथ, अगर मिलता है तो। ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी तुम बोला कि ऑब्वियसली टीवीएस में ग्रो हुआ है, तो टीवीएस में भी क्या ग्रो हुआ है, तो ये मॉडल में ग्रो हुआ है। तो मुझे ओके। पढ़ते ही एक एनालिसिस आता है कि लेट्स से अगर मैं बोलूं कि होंडा का क्रेटा में सेल्स हुआ है, तो क्रेटा इज एन एसयूवी एंड एसयूवी सेगमेंट इज ग्रोइंग इन इंडिया, हम्म। तो मेरा स्ट्रेट अवे ध्यान जाएगा मारुति में क्या हुआ है, तो मैं ढूंढूंगा एक्चुअल रिपोर्ट में कि मारुति का तुमने कुछ लिखा है क्या, ऐसा है। अच्छा। तो ये ओके। माइंडसेट होता है टू राइट योर रिपोर्ट, कि सामने वाले को जब तुम देते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ ना टोटल सेल्स ड्रिवन 18%, थ्री व्हीलर्स ग्रोथ, तो मेरा ऐसे ठीक है, मतलब ठीक है, मैंने भी पढ़ा है। ओके, क्योंकि तुम ओके। हम ऑटोमोबाइल रिपोर्ट करते हैं, वो इतना एक्सेल फाइल किया है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक थ्री व्हीलर में अभी थ्री व्हीलर ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज थ्री व्हीलर इज हार्डली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाँ 20%। हाँ, मतलब ज्यादा, मतलब बस के लिए डिफरेंस है, इसीलिए उतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, बट हाँ, उतना तो पूरा परसेंटेज ग्रोथ चार्ट के हिसाब से देखने जाए तो उतना नहीं। इस तो फोर व्हीलर और टू व्हीलर की बात करते हैं हम, थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल तो बहुत छोटा पार्ट है। ओके। Okay? तो यहाँ पे ना ये भी कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे डाल सकते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ये अलग क्यों कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स, ये पैसेंजर में क्या फर्क है, फोर में क्या फर्क है, व्हाई इज दिस डिफरेंट। सर, कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि मतलब कुछ कुछ इसका भी, जैसे आयशर मोटर्स का भी कुछ कुछ कमर्शियल व्हीकल्स है, तो मैंने मेनली वो टू व्हीलर सेगमेंट्स में ही किया था, तो उसमें भी थोड़ा है, तो इसीलिए हम अलग से दिखा रही हूँ। नहीं नहीं, कमर्शियल तो सब साथ में आएगा ना, टू व्हीलर थ्री व्हीलर, क्योंकि ना सी तुम्हारे नंबर्स नहीं टैली हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने अलग से कर दिया है ना, सीवी और नहीं ना, पीवी तो का। नंबर्स टैली हाँ होने चाहिए हाँ। ना। ओके ओके तुम सर। अगर बोल रहे हो ये फुल है, इंडस्ट्री डेटा ये है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल, तो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स तो अलग आते ही नहीं है, पैसेंजर व्हीकल आर सेम लाइक फोर व्हीलर, तो ये क्यों टैली नहीं हो रहे तुम्हारे, सर मेरा ये यही पैसेंजर डाउट व्हीकल्स था, तुमने अलग से क्या किया सर है। पैसेंजर व्हीकल में क्या क्या आता है? फोर व्हीलर ही आते हैं पैसेंजर व्हीकल, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर इज सेम एज पैसेंजर व्हीकल्स। तो नहीं होगा ना फिर सर टैली, क्योंकि वो फोर नहीं, तो नाइन्टी ये वन है, नंबर्स ही उसके गलत है, बाद दोनों नंबर्स ही गलत है, हाँ। ये दोनों पता नहीं कहाँ से आया नंबर्स, ये कौन से नंबर्स है, कमर्शियल व्हीकल का शायद से हो सकता है, तो ये इसी में आएगा ना, ओके। बिकॉज अंकिता ऑटो इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ओके, हम्म। एंड क्या बचा, कमर्शियल, बस ये चार ही तो है, ट्रैक्टर्स की तो हम बात नहीं कर रहे, तो ये तुमने पीवी अलग कैटेगरी क्या डाल दिया बीच में। ये शायद सर वो टोटल सेल्स ले लिया है मैंने, हाँ मतलब जो समरी में जो टोटल सेल्स होता है ना, फोर, उसका वो फोर नहीं ना, टीवी सिर्फ का। चार ही कैटेगरी आते हैं, नहीं, हाँ हाँ हाँ। इसमें भी चार कैटेगरी आएंगे, फिर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी तो मैच होना चाहिए, अभी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मैच क्यों नहीं हो रहा तुम्हारे, और ये क्या डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक पीवी, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट, वो हाँ। तो वो तो ये होंगे ना फोर व्हीलर, हम्म। क्या तुम्हारे ये कौन सा नंबर आ रहा है तुम्हारा। फिर भी ये क्यों मैच नहीं कर रहा? हाँ, तो वही तो सब मैच आना चाहिए ना, कि फोर व्हीलर्स का तुम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बता रहे हो। ओके सर, हम एक बार आपको फिर वो एक्सेल शीट फिर से भेज दे रहे हैं, एक बार हाँ एक हम बार भेजो खुद मुझे, भी। क्या किया तुमने, हाँ हाँ। तो अलग अलग क्यों आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे वापस पैसे, तो यहाँ पे क्यों है पैसेंजर, डोमेस्टिक पैसेंजर, एक्सपोर्ट पैसेंजर, क्या किया तुमने, सब नंबर एक दूसरे को टैली होने चाहिए, सी कैसा होता है व्हेन हम्म यू राइट, क्या पर्पस है टू मेक यू राइट दिस, इज आई जस्ट आई डोंट, मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो तुम एक्चुअली, ये तो कोई पढ़ने वाला है नहीं तुम्हारा, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखने वाला है, मैं हम्म ना नंबर्स ही देखूंगा, जो भी देखेगा ना वो नंबर्स ही देखेगा,
और तुमको भी ये पर्सपेक्टिव से सेंड करना है कि सामने वाले का डेटा नॉलेज बढ़े। तुमने जब बोला ये 4 कंपनी है, जैसे अब्दुल की बात करते हैं, अभी इसने जो बोला है 4 कंपनीज है, ठीक है। अच्छा, अभी टू व्हीलर में क्या है, टू व्हीलर में ये 1482 आया है, तो क्या हुआ है, मोटरसाइकिल्स बढ़े या स्कूटर्स बढ़े, डोमेस्टिक बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो यूजुअली जब हम इसका बात व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेस रिलीज नंबर्स, तो हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स ही मिलेंगे हमको। तो मैं बोलूंगा अच्छा इसमें से डोमेस्टिक कितने, एक्सपोर्ट्स कितने, तो नंबर इधर आने चाहिए। अच्छा, तो ये देखो इसके भी नंबर्स टैली हो रहे हैं कि वो टोटल सेल्स में डोमेस्टिक कितने थे, एक्सपोर्ट्स कितने थे, टैली हुआ। फिर टू व्हीलर्स 1 to 2 का क्या फर्क था, डोमेस्टिक में कितने, एक्सपोर्ट्स में कितने, तो टैली हुआ नंबर्स। फिर उसके बाद 4 व्हीलर्स, अच्छा इसमें सॉरी इसमें ये किया मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ईवीज, 1 to 2 टैली हो रहा है, शुड टैली कि टू व्हीलर्स में और क्या क्या फर्क है, क्या ग्रो हुआ है, तो स्कूटर्स ग्रो हुआ है। फिर वो उसको लिंक होने चाहिए सब नंबर्स, देन ये कंपनी वाइज है, जो 1220 है, ये कौन से कंपनीज में ग्रोथ है एग्जैक्टली फिर हीरो में, हीरो का है, हीरो का 460 है, तो 460 में क्या है, टू व्हीलर्स ही है। इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अच्छा मोटरसाइकिल स्कूटर अलग से दिए उसके, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट आ गया सब। ओके। तो दिस इज हाउ इट शुड वर्क, सब नंबर्स एक दूसरे को टैली होने चाहिए। अब्दुल तुमने ओके किया सर। अच्छा है, अभी बस वो थोड़ा लिखते वक्त नो मेक श्योर कि क्या हो हाँ रहा सर, मैं उससे कर दूंगा। है। हाँ सर बेसिकली आप ये कह रहे हो ना कि अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू लिख रहे हो तो ये बताओ कि टू व्हीलर्स में कितना ग्रोथ हुआ है, और टू व्हीलर्स के अंदर फिर किस ब्रांड में कितना हुआ है, और इस सेगमेंट ब्रांड में में फिर कितना, किस सेगमेंट में कितना हुआ है। इस सेगमेंट में कितना हुआ है, या फिर मेजरली वही है कि 29% का मेजर ग्रोथ ड्राइवर क्या था, हाँ एक दो ठीक है तुम लिख सर। सकते हो, एक दो ही ज्यादा से ज्यादा, ऑटो का ओके सर। एक, सॉरी टू व्हीलर का एक, 4 व्हीलर का एक, ताकि मुझे यही पढ़ के ना ध्यान में आ जाए अच्छा हीरो ने अच्छा किया है, फिर किसने, फिर या फिर 4 व्हीलर में मारुति ने अच्छा किया है, फिर मैं ऑब्वियसली ढूंढूंगा, मैं सीधा ये पढ़ूंगा नहीं, मैं इधर जाऊंगा अच्छा हीरो ने क्या किया है, क्या ग्रो हुआ है, हाँ सर, क्या गॉट इट। रीजन के वजह से ग्रो हुआ है हीरो का। तो मुझे मॉडल वाइज भी अगर मिलता है, तो तुम्हारे अगर मॉडल वाइज में डाल सकते हो, तुम्हारे पास है डेटा, तो मॉडल वाइज में कौन सा मॉडल ग्रो हुआ है हम्म। वो है ना तुम्हारे पास, नवंबर है तो मॉडल वाइज डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास, ऐसा हाँ डोमेस्टिक का सर। एटलीस्ट डोमेस्टिक। तो सर इसमें एक डाउट था मेरा। हाँ तो एक बार आप खोलना रिपोर्ट, स्क्रॉल नीचे करना बजाज ऑटो पर। बजाज ऑटो का सर बिल्कुल सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये चार्ट भी डाला था। ये टू व्हीलर सेल्स ये बिल्कुल फ्लैट ही चलता है ईयर ऑन ईयर। तो इसका मुझे रीजनिंग लिखनी थी कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मैंने इस पे ये लिखा था कि वो जो पल्सर जिसके बेसिस पे बजाज का सब कुछ हो रहा था, उसके हाँ कॉम्पिटिटर्स आ गए, हीरो में लाइक एक्सट्रीम आ गया, टीवीएस में राइडर आ गया, तो जिसकी वजह से वो ग्रोथ उसमें आ नहीं पा रही उतनी। तो ये सही है ना एक तरह से। करेक्ट, हाँ बेस्ट है, पढ़ा मैंने ये, अच्छा था, बराबर है। हम्म। लार्जली मोटरसाइकिल्स लाइक, तुम या चाहिए तो पल्सर का भी डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो, डीटा पल्सर कितना है, जो है ना डेटा पूरा फ्लैट है हाँ पल्सर। हाँ हाँ हाँ। और मेजर अभी पल्सर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है उस केस में, अगर तुमने लिखा है, लिखा था तुमने यहाँ पे, किधर लिखा था आई थिंक, नहीं, पल्सर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, अगर तुम हाँ पल्सर का हाँ नाम हाँ। ले रहे हो स्टिफ हम्म। कंपनी, तो हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स, हो ना डेटा, डोमेस्टिक सेल एटलीस्ट, नॉट एक्सपोर्ट का तो नंबर नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ सर ठीक है, ओके, समझ गया। ये तो ऐसा वो, मतलब ऑटोमोबाइल रिपोर्ट हमारे 50-50 पेज तक बनने के, यही हम्म। हर एक चीज डिफाइन करें, हर एक चीज। हाँ सर, अगर मैं बजाज, लिख रहा हूँ पल्सर के बारे में तो वो बताना पड़ेगा मुझे। हाँ बताना पड़ेगा कि पल्सर का कितना था, क्या है, हम्म। ये सबका ही बताते हैं हम, मतलब ठीक है अभी तुमने फर्स्ट टाइम ही बना रहा है, तो बट जब हम और इसको इम्प्रूव कर, इसके लिए होता है वो 2-3 महीने जब तुम करते हो ना, तो तुमको समझता है कि इसमें और चीजें क्या ऐड कर सकती है, तो 3 महीने बाद तो तुमको पूरा ऑटो सेक्टर समझ में आएगा कि अरे टीवीएस, कोई रात को भी पूछ लो कि टीवीएस क्या करता है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन से कंपनीज है उसमें, कौन से प्रोडक्ट्स है उसमें, क्या ग्रो हो रहा है, जब तुम बोल रहे हो इतना ग्रो हो रहा है टीवीएस का, क्या इसमें कौन सा मोटरसाइकिल ग्रो हो रहा है, तो तुमको पता ही होगा ना डेटा, कौन सा मोटरसाइकिल ग्रो हो रहा है इसमें, क्योंकि है तुम्हारे पास। हम्म। सर। सर मेरा एक बार देख सकते हो क्या, दिसंबर का मैंने आपको व्हाट्सअप किया है। हाँ। हाँ यही था ना वो भी तुम्हारा, अभी ऐसा क्यों है तुम्हारा, ऐसा अ, है ना, क्यों मतलब वो ऐसा बाहर नहीं आना चाहिए वैसा। नहीं, इसका कैसा है, दूर का कैसा है,
ओके मतलब वो आउटलाइन नहीं दिखना चाहिए वैसा। आउटलाइन ये नहीं है, टू व्हीलर्स नॉर्मल करते हैं, 3 मिलियंस MN लिखते हैं, हेडिंग ऐसा मैंने बोला यहाँ पे हेडिंग नहीं होता है, सिर्फ इतना ही हेडिंग होता है, दो चार्ट है तो दो अलग अलग हेडिंग होगा। ओके। फिर ये इतना बड़े नंबर्स क्यों है, मिलियंस थाउजेंड्स में क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि वो ओके ठीक है मैं करता हूँ। नहीं, इसका रिपोर्ट मैं भेजता हूँ अब्दुल का तुमको, इसका देखो कैसे बना है, तो लुक सेम लाइक दिस, तुम्हारा कितना ठीक फर्क है है? और ठीक सर है। एक बार मेरा भी चेक कर लीजिए ना। हाँ दीदी एक सेकंड। ये ऐसे नहीं बनता है प्रति, इसका अलग है, यहाँ से जीरो से चालू होता है सब, ये मैंने बताया था ना एक सेशन में कोई। वो एक्चुअली मैंने मंथ का ही सिर्फ लिया है, वो न मंथ में कैसे ग्रोथ हुआ था, वो कहाँ नहीं तो कितना लेने का, ईयर का लेने का है ये पूरा? कैसे होता है वो ना, चालू जीरो, ये तुम क्या बता रहे हो मुझे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज अ चार्ट की जीरो से ये कितना, अगर दोनों को अगर जीरो रखें हम, तो 3 नवंबर का अगर ऑटोमोबाइल इंडेक्स और निफ्टी इतना है, तो वहां से कितना चेंज हुआ, तुमको प्राइस चेंज की बात नहीं करनी उसमें, अच्छा ओके। दोनों के रिलेशन की चेंज की बात करनी है, वो मैंने बताया था कोई एक सेशन में। ठीक है मैं कभी तो बता देता हूँ, ये ठीक है, ये स्पेस छोड़ देना अभी के लिए, अभी के लिए कोई यूनिट ज्यादा ना, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ओके 1372, रिद्धि एक काम करता हूँ, मैं रीड करता हूँ ये, फिर मैं तुमको देता हूँ, ठीक है? ये ओके मेरे को सर। क्विकली नहीं आएगा बताने को, ठीक है? अच्छा गाइस, दोज हु आर सेंडिंग मी ना, जस्ट इफ आई डोंट रिव्यू योर सेशन, रिव्यू योर रिपोर्ट, प्लीज पिंग मी कि सर मैं रिपोर्ट भेजा, आप रिव्यू बाकी है, तो मंडे मॉर्निंग कॉल्स में ही रिव्यू करेंगे, तो ऑलवेज व्हेन यू डू इट जस्ट सेंड मी कि सर ऐसा ऐसा है, तो फिर तुम्हारा एक सेकंड में बताया, मैंने पढ़ा था उस दिन बट मैं भूल गई, तुम आते नहीं हो ना कॉल पे, फॉरगॉट, तुम आए होते तो कोई सेकंड। सर कैसा मेरा मैंने एक्चुअली नवंबर का भी बनाया है सो मतलब वो भी वैसे ही है। तुम्हारा वो भी प्रेजेंटेशन काफी खराब है, ठीक है ठीक है मैं अब्दुल का रिपोर्ट तुमको भेजता हूँ, वैसे का वैसे ही बनाना। ठीक है ठीक है ठीक भेज दो। सर मैंने एक्सेल आपको भेज दिया है। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी तक। हाँ वो जो देख लेना तुमने, वो लिंक हो रहे हैं नंबर्स, वो तुम ही देखो पहले कहाँ पे क्या अलग डाल रहे हो तुमने, ओके ओके फिर एक बार मुझे भेजो कि सर ऐसा नहीं आ रहे नंबर्स, तो फिर आई कैन टेल यू कि क्या ओके तुम ओके तुम श्योर कहाँ सर। पे गलत जा रहे हो। ठीक ओके है, सर, एक बार पहले हम देख हाँ एक लेते बार हैं तुम देख क्या। लेना। ओके 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 सर। कौस्तुभ, लेफ्ट, ये ऐसा क्यों है, बी राइट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन पे है, ऐसे इधर से चालू हो रहे नंबर्स। ठीक है, कब थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर ये, इट डजंट लुक गुड, दिसंबर नीचे सर वो 24 मैंने नीचे। लाइक पिछली बार भी आपने बोला था ना, वो ट्राई किया ना मैंने, तो हाँ होता ही नहीं, एक लाइन ये में बढ़ा आता दो ही ना नहीं है थोड़ा, वो। ये यहाँ से ही हाँ कर वो दो। करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। अच्छा तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा है तो नीचे भी इधर से आना, इधर यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम ओवर हियर, ओके सर। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर तुमने कुछ डाला नहीं है तो लेट्स से, हाँ अब्दुल ने तो डाला है सब, तो डाला है तो फाइन है, अगर कुछ डाल नहीं रहे हो तो फिर नो नीड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द सेम पार्ट। हाँ सर। ओके अच्छा इसमें कौन सा जी, फर्स्ट टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर का स्पेसिफिकेशन कहाँ पे है, 141, यहाँ पे नंबर अलग क्यों है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेम होने चाहिए ना हम्म। फिर यहाँ पे भी 350, अभी ये क्या है तुम्हारा, फोर व्हीलर इज 320, अभी 356 क्यों है? सर वो थोड़े सीवी के इंक्लूडेड नहीं है, तो ऊपर नीचे हो गया नंबर, बिकॉज टाटा का जो है ना, मैंने दोनों लिए, तो उसमें ऊपर नीचे हो गया है। तो कंज्यूमर वही दिखा व्हीकल्स ना, के लिए उसमें, इसमें नहीं लिए। नहीं तुमने जो यहाँ पे फोर व्हीलर लिए हैं वही यहाँ पे आने चाहिए, हाँ उसी सर। का ही ब्रेकअप आना चाहिए, तो हम्म। दिस इज हाउ इट गोज ना, दिस इज हाउ द पीपीटी गोज। रिद्धि तुम्हारा है ऐसा, रिद्धि? नहीं सर, वो डेटा बराबर है मेरा। 1302 व्हीलर्स का हाँ ये बराबर है ना, ठीक है मैं तुम्हारा देख के बता,
रिद्धि ये नहीं डालना है इसमें, चार्ट्स नहीं डालना है, क्योंकि ये तुमने ऑलरेडी, एक तो तुम साइड में डालो जैसे ये अब्दुल ने डाला है, पॉसिबल यहाँ पे डाल दो, ओके क्योंकि तुम्हारे सिर्फ चार्ट ही दिखने चाहिए, बिकॉज आई विल रीड ओनली योर चार्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तुम्हारा रिपोर्ट। ओके, एंड ये वाइट, क्योंकि ना यहाँ पे देखो देयर इज नो हेडिंग फॉर इट, इट डजंट लुक, कोई लाइन में नहीं है, इधर उधर लिखा है। अभी ये क्या चार्ट है, तो ये चार्ट है तो मैं, मेरा ध्यान इधर ही जाएगा ना, इसके ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए। तो सर वो मैंने एग्जिबिट 3 में ही करके तीनों लिखा है, टोटल नहीं पीवी मतलब नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं टोटल। होता है, हर एक को एग्जिबिट अलग है, हर एक चार्ट के बारे में, ये भी, ये क्या है ना, मुझे पता होना चाहिए क्या चार्ट है। वो एक्चुअली ब्रेकअप यूनिट्स है जो अपना हाँ डोमेस्टिक सेल्स पता है, में वो तो नहीं, हैचटैग वो मुझे सेडान समझ का रहा है, देता है। नहीं वो मुझे समझ रहा है, बट इट शुड लुक लाइक कि एक इसमें दिखना चाहिए ऐसा, ठीक है। सो मतलब एंड दिस अभी इज ये नॉट, क्या, वन बाय वन नीचे करके सारे चार्ट्स को अरेंज करना है और वो जो बाजू दोनों चार्ट है वो बाजू में डालना है। हाँ ऐसे देखो, एंड मैंने ये बोला था ना कि ऐसा वाला चार्ट लेना, डोंट क्लिक द पाई चार्ट, पाई अच्छा डजंट ओके। लुक गुड, अच्छा नहीं लग रहा है वो, ये काफी, फिर ये बोला था मैंने कोई सेशन में, इट लुक्स बेटर, क्विकली समझ जाता है। इसमें थोड़ा वो क्या, तुम्हारा प्रेजेंटेशन डजंट लुक गुड, काफी बड़ा दिख जाता है, वाइट स्पेस ज्यादा बढ़ जाता है इसमें, एंड टेबल्स इज नॉट एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब चार्ट्स, ठीक है। टेबल्स है तो फिर एक ही टेबल में तुम कर दो, बट टेबल्स आर नॉट रिकमेंडेड, टेबल्स तुम चाहिए तो लेफ्ट पे कर दो। तो अभी ये क्या है, ईवी का 2, अच्छा तो इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है ईवी में। वो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर उसका जो बेस था वो बहुत ही कम था, तो वो ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखा रहा है उसका। अच्छा तो हमेशा एक्स लिखते हैं, 2x या 3x ऐसा लिखते हैं, इतना परसेंट अच्छा 20x, इसमें ऐसा परसेंटेज नहीं लिखते इतना बड़ा। ओके, मतलब 0 से कितना x हुआ है, सीधा टाइम्स 4 डिवाइड बाई 2, 0.02, तो इतने टाइम्स जो वो सिर्फ यहाँ पे अलग से लिखते हैं, एंड ये सब सर तुम्हारे, अगर जीरो रहा हो तो फिर कैसे करेंगे? नहीं जो 0 तो कुछ नहीं बोलते हैं, बस एन लिखते हैं। नहीं नहीं सर, नवंबर 24 में जीरो है और नवंबर 25 में हाँ लाइक 100 हो गया है, नहीं, तो फिर? एन ए नॉट एप्लीकेबल, अच्छा ग्रोथ एप्लीकेबल ही नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है। था ही नहीं ना पहले, हम्म नेगेटिव हुआ हम्म तो भी एन लिखते हैं, नेगेटिव हुआ तो भी ग्रोथ नहीं लेते तुम, नेगेटिव से ऐसा पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आता है, इट इज नॉट प्रॉपर मैथ्स। ओके, उसके लिए नंबर्स ही चाहिए तुमको। ओके। कि कौशल ये देख लेना तुम्हारे नंबर्स, एंड ट्राई टू प्रेजेंट, हाँ सर। ट्राई टू प्रेजेंट दिस नंबर्स ओवर ईयर, मतलब योर रिपोर्ट शुड रिवॉल्व अराउंड दिस नंबर्स, कि ये क्यों हुआ है। जब हम्म तुम बोल रहे हो इंडस्ट्री सेल, तो इंडस्ट्री में डोमेस्टिक क्या रीजन के वजह से ग्रो हुआ है, या एक्सपोर्ट क्या रीजन के वजह से ग्रो हुआ है। टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर टू व्हीलर्स वाइल सेगमेंट, ठीक है, दिस इज फाइन। हाँ तो ये तुमने बराबर लिखा था, बट इफ यू कैन मेंशन ना कंपनी, दिसंबर, हाँ दिसंबर में तो कुछ नहीं आएगा, फाइन, दिस इज टोटली फाइन। सो अब्दुल मैं ऐसा बोल रहा था, कैन राइट दिस 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में क्या है, अगर 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर भी लिखो, अगर कौशल तुमको कुछ पता है 3 व्हीलर के बारे में तो दिस टोटली हाँ फाइन। दो अलग अलग कर दो एग्जिबिट्स, हमेशा जितने चार्ट्स अलग है ना, एक में मत करना, वो ठीक ना है सर। स्पेस बचेगा और कुछ नहीं हमारे लिए। अभी ना उस दिन मैंने एक सैमी का रिपोर्ट बताया था ना, सैमी के रिपोर्ट में उसी दिन वो लोग ने वो चार्ट्स कैसे डाले थे, शो यू, कल थे तुम कॉल पे वस्तु, नहीं सर, ओके, मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, मैं बताता हूँ, जस्ट फॉर एक बेसिक था, वो लोग ने जो चार्ट्स को जब मिक्स करते हैं, दिस इज हाउ दे डू, ये बॉक्स नहीं है, ये लोग ने सिर्फ एक लाइन डाला है बीच में जस्ट टू शो दैट, वो व्हाइट स्पेसेस कम करने के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू यूज, यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, ऐसा दिखता है ना ये, फिर भी सी हाउ दे ट्राइंग टू, ओके, सो पॉसिबली होता है तो ठीक है, वरना जाने दो, क्योंकि यहाँ पे तुमने ना वो नहीं आया तुम्हारा, क्या है ये 0 से कितना ऊपर तक है, हाँ सर। हाँ वो नहीं डाला है। फिर यहाँ पे भी परसेंटेज अगर तुम डाल सकते हो तो ठीक है, डेट्स तो है, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे तो क्या है, वो बढ़ जाएगा ना, लगेगा नहीं वाइट स्पेस है। हम्म। एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो तुम्हारा ये होता है ना लिखने,
यहाँ पे स्पेस रहेगा चलेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए। Okay, sir, got it. मतलब whenever we read from the left hand side ना, तो मुझे Hmm. पता है यहाँ पे कुछ है नहीं, पर अचानक से तुम डालोगे and यहाँ पे तो it doesn't look good। जब भी फोटोज डालोगे तो ये जो मार्जिन है ये पकड़ के ही तुमको फोटो डालना है, चार्ट डालना है, फिर यहाँ पे डालो एंड प्रॉब्ली ट्राई टू अवॉइड द वाइट स्पेस कि जितना हो सके। मैंने बोला ना इधर लिखने से अच्छा इधर लिखोगे तो चल जाएगा, या इधर लिखोगे अगर लेफ्ट पे डाल रहे हो तो यहाँ पे, सॉरी राइट पे डाल रहे हो तो ये Got it, रीजन got है it. वो यहाँ पे लिखना, ऐसे लेफ्ट पे तो मेजरली, क्योंकि ये समझ रहे हो ना कि वाइट पे, बिकॉज दिस यू कैन मूव अप, इसका क्या करोगे, इधर क्या करोगे। Hmm. करेक्ट थिंग, अब्दुल ने भी कोई किया है, नहीं इसने तो अलग ही किया है। ओके फोर व्हीलर सेगमेंट यू कैन राइट एन हेडिंग, ठीक है, फोर व्हीलर सेगमेंट डोमेस्टिक, रीजन वन ऑफ द रीजंस। सर वो ना स्टार्टिंग उस दिन लाइक मैंने वो उसी दिन भेज दिया था ना आपको, लाइक सेकंड को ही, तो लाइक उस दिन मुझे कुछ मिला ही नहीं किधर। मिला नहीं, अच्छा ठीक है, इंक्रीज कर, अच्छा तो इसमें भी कंपनी का नाम डाल दो, विच कंपनी आउट परफॉर्म, ठीक है, हाँ सर हेडिंग में, वो कर। हेडिंग में डाला, अगर कुछ नहीं मिला तो ठीक तो है। लाइक बिकॉज ये रिपोर्ट में बहुत कम चीज़ है, मुझे लाइक मॉडल का कुछ नहीं हाँ मिला था, कोई भी मॉडल का, तो लाइक उस वैसा ही लिखा है मैंने। हाँ, यू कैन राइट लेड बाय मारुति, मारुति वो तो उसका तो है ना, लेड बाय मारुति या लेड बाय हाँ हाँ वो तो है। महिंद्रा या लेड बाय टाटा मोटर्स के। डोमेस्टिक सेल्स में क्या हो गया, और एक्सपोर्ट में भी अगर एक्सपोर्ट डिक्लाइन सबसे ज्यादा कौन से कंपनी का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया है। तो व्हेन आई रीड दिस ना, मुझे वो समझ में आएगा कि अच्छा मुझे ये कंपनी के बारे में स्पेसिफिक रीड करना है कि मारुति में ऐसा क्या हुआ है, और यू विल ऑल्सो फाइंड ना कि मारुति का एक्सपोर्ट क्यों डिक्लाइन हो गया, यू कैन गूगल इट, ऐसा कुछ है तो किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा डेटा कि मार, बिकॉज इफ यू गिव अ प्रॉम्प्ट, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, या फिर पहले का भी कुछ मिल जाएगा कि पहले कुछ ऐसा हुआ था इसके लिए अभी ऐसा हुआ है, कभी न्यूज में आया होगा कुछ, उस दिन नहीं होगा, ठीक है, जैसे जिस दिन नंबर है उस दिन तुमको शायद नहीं मिलेगा, बट पहले कुछ हुआ होगा, ठीक है, तो वो भी तो आ सकता है, ये डालोगे तो वो पहले के भी न्यूज आ जाएंगे। आ जाएगा। करेक्ट, ऑलवेज विद वन की डोमेस्टिक ग्रोथ क्या है, पर पहले तो तुम्हारे नंबर्स ठीक करना, बिकॉज नंबर्स के अलावा तो ये रिपोर्ट्स विल नॉट बी मेक सेंस कि अलग अलग हाँ क्यों सर दिख मैं रहे वो हैं देखता नंबर। हूँ, बिकॉज मैंने ना टाटा मोटर्स में मैंने सीवी और पीवी दोनों का ऐसा रख के रखा है, बिकॉज अभी कंपनी अलग हो गई ना, लाइक उसके वजह से मैं कोई फोर व्हीलर में ऐड हो गया, इसमें निकल गए टोटल में। हाँ तो वो देख लेना हमेशा, इट शुड टैली, ये मैं तो नंबर, जो समझ गया तुमने मुझे नंबर्स क्या हो डाले गया। यहाँ पे, इसी का ही बाइफरकेशन होना चाहिए सब सब जगह। हाँ। कौन डार्क कलर्स, ये डार्क बड़ा यस। बड़ा जो है वो डार्क, ऑलवेज ऑलवेज यूज डार्क कलर्स, डार्क वाला जो डार्क ब्लू आता है ना वो, दैट लुक्स वेरी गुड, ये इट डजंट लुक गुड, यस सर। ठीक है। अच्छा ये 31% तुमने ये इटैलिक किया है क्या। हाँ सर, लाइक वो मैं हटा देता हूँ, लाइक पिछली बार मेरे को याद नहीं था, नहीं बिकॉज इटैलिक, लाइक मेरा भी वो आदत हो गया लाइक मॉडल के वजह से। हाँ ठीक है, इसमें वो क्योंकि अलग लग रहा है ना, फिर ये इसके हम्म। फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है। सर लाइक वो मेरे को इसमें कैलिबरी दिखा रहा था, बिकॉज वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं डाल नहीं, के कर फॉन्ट रहा एज था ना। इन द साइज ऑफ द अच्छा फॉन्ट। साइज यस। हाँ यहाँ पे देखो, ये कैसा है, इधर भी ऐसा होना चाहिए ना, इट्स डिफरेंट। हम्म। ये रहा वापस यहाँ पे डिफरेंस है, ये देखो ये फॉन्ट पूरा ही अलग है, ये फॉन्ट पूरा ही अलग है, तो 8 9 बहुत मैटर करता है। फिर यहाँ पे हम्म। थाउजेंड्स में तुमने दिया है, तो फिर ये क्या दिया है, कौन से मंथ का, ऐसा क्यों है यहाँ पे चार्ट, क्या है। ओके वो कट गया नीचे। हाँ फिर ये जो होगा वो एग्जैक्टली यहाँ के नीचे से ही चालू होगा, हम्म। तो यहाँ पे तुम बोलो ना, यहाँ पे फिर तुम ब्रेकअप डालो ना मारुति के, इसका टोटल सीवीपी में कितना आता है, यस। ऑलवेज हैव अ ब्रेकअप, या फिर तुमको कोई परसेंटेज वाइज डालना है परसेंटेज वाइज डालो, या फिर 2 3 महीने के सेल्स डाल दो, जैसे मैंने अंकिता को कल बोला था कि इसको जगह बच रहा था, तो ये भी सेल्स इज बेटर वे ऑफ सेइंग कि क्या हो रहा है 4 5 महीने में, या अगस्त से नवंबर क्या हो रहा है, तो ठीक है ना, मैं अच्छा लगता है। ओके सर। ओके अंकिता, एक नवंबर का भी डाल सकते हो तुम यहाँ पे, नवंबर 24 और फिर लास्ट 3 मंथ्स, ऐसा है, क्योंकि 24 ओके नवंबर ईयर ऑन ईयर इंपॉर्टेंट होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो नवंबर डाल बस यहाँ सकते हो, पे November 24 फिर September October सितंबर November अक्टूबर, हाँ 20। वो चल ओके जाएगा, सितंबर ओके अक्टूबर लास्ट 3 महीने में क्या हुआ, नवंबर सेल्स। ओके ओके सर। ओके हम्म, तो बस समझे, यू कैन डू दैट, कौशल 3 4 महीने के एक या साथ सर। अगर कुछ भी नहीं है तो पूरे साल के डाल दो एक साथ,
लास्ट Biggest, नवंबर yes. से नवंबर तक, हाँ बेस्ट सब आ जाएंगे। फिर तुमको ट्रेंड दिखाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक तुमको कोई दिखाना है तो जैसे अब्दुल तुमको अगर दिखाना था पल्सर का पूरा, तुम ट्रेंड ही दिखा सकते हो लास्ट पूरे महीने पूरे साल में क्या हुआ है पल्सर में, ठीक है सर। या फिर तो सर क्वार्टरली सिर्फ करके दिखा सकते पल्सर हो, का, 3 क्वार्टर्स में क्या हुआ है। सर सिर्फ पल्सर का दिखाऊं या पल्सर के साथ इनको भी दिखा दूं, ये जो हीरो की और राइडर और ये हैं एक्सट्रीम, तो उससे कंपैरिजन भी हो जाएगा फिर। पर वो फिर उनके इसमें दिखाओगे कि उसके साथ नहीं दिखाओगे, अच्छा बजाज हाँ। में नहीं आएगा, फिर हाँ वो हाँ हाँ हाँ। रेडियर तो उसमें आएगा, टीवीएस में आएगा, ऐसा है। तो इसके लिए ना वो जब ओके। तुम बनाते हो ना क्वार्टरली नंबर्स में ना, तुम्हारे रिपोर्ट में कंपनी वाइज में, तुम ना एक ऐसा ही टेबल 3-4 टॉप मॉडल्स का कर सकते हो कि इसके टॉप मॉडल्स कौन से हैं बजाज के, टॉप 5 कंपनीज, टॉप 5 मॉडल्स, अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ वो कर देता हूँ मतलब मैं। टॉप 5 और बाद में अदर्स कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो 100% होना चाहिए ऐसा। हम्म। टॉप 3 या टॉप 5 मॉडल्स और फिर उसके बाद अदर्स। ओके, ठीक है, वो भी पाई तुम चार्ट ही ना सर? पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट ही, हाँ क्योंकि तुम जब बोल रहे हो कि बजाज का ग्रोथ हो रहा है तो मुझे क्वेश्चन ना कि बजाज पल्सर कितना कितना परसेंट आता है, कि तुम इतना बात कर रहे हो उसकी, तुम बोलो कि हम्म। पूरा का पूरा डी ग्रो उसके वजह से हुआ है, तो पल्सर कितना कितना परसेंटेज फॉर्म्स ऑफ द एंटायर सेल वॉल्यूम, ऐसा। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम्स एंड फिर ट्रेंड कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम ऐसा कर सकते हो ना, वॉल्यूम्स और फिर ट्रेंड इतना डाला ही है, तो हम्म। वो तुम जनवरी फरवरी और फिर तुम ट्रेंड दिखा दो मंथ ऑन मंथ क्या ग्रोथ हुआ है टू व्हीलर सेल्स में। ये सिर्फ चार्ट, ये सिर्फ ये अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन बार चार्ट में फिर तुम कर सकते हो। Okay. ठीक है सर। तो सर उसमें क्या दो क्या क्या होंगी क्वांटिटीज? एक तो ये हो जाएगा जो टोटल सेल्स है टू व्हीलर का, हाँ ये तुमने और डाला है ना, बार पे क्या सेल्स जाएगा? ग्रोथ, ग्रोथ हो जाएगा ग्रोथ, अच्छा। मंथ ऑन मंथ परसेंटेज वाइज ग्रोथ, क्योंकि ये हमेशा ना लाइंस हमेशा परसेंटेज में होने चाहिए, नंबर्स में नहीं, नंबर्स हमेशा बार में होते हैं। तो ये 350 ना, तो मुझे बार में दिखना 350 ऐसा है, फिर वो डिक्लाइन हो रहा है, एंड फिर उसमें तुम चार्ट डाल दोगे कि 350 ग्रोथ कितना हुआ है सेल्स का, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। समझ गया, हाँ ठीक है, बस ठीक है सर। ठीक है। तो उसमें क्या है, तुम्हारा दो चार्ट, दो लाइन नहीं आएगी, एक ही लाइन आएगा, और फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो तुम आ ही गया सीधा सीधा। हम्म। तो ये दिखाने की तुमको जरूरत नहीं है, एक ही साल का दिखाओ, तुम्हारे 25 का, और 25 का तुम दिखा सकते हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हो गया, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितना हो गया, तो यूजुअली ईयर ऑन ईयर बेटर होता है। Rest ओके is सर। good. Okay. ठीक है, others those who have made, अंकिता, रिद्धि तुमको भी समझा क्या, what changes you need to make, सब ये हाँ ये निकालना है। सब मैं वो हाँ अभी ये, चेंजेस करके ही भेज देती हूँ आपको हाँ थोड़े टाइम में। ये सब चार्ट्स चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स चेंज करो, देन ये नहीं करना है, बाहर ही होने चाहिए सब, ये तो तुम इसमें डाल दो ये साइड पे। ओके। और वो अभी जैसे यहाँ पे कंपनी वाइज इफ आई पुट, तो यहाँ पे स्पेस रहेगा तो वो चलेगा क्या? कहाँ पे? सर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वो चार्ट में डालूंगी तो फिर वो वहाँ पे मतलब हर कंपनी के सामने ही कंपनी का चार्ट रहेगा ना, तो फिर वो हर बीच में बहुत ज्यादा स्पेस भी रहेगा। ये तो पुनः तो और कोई स्पेसिफिक डालो ना यहाँ पे, जैसे अब्दुल ने डाला है, यू कैन पुट दिस बार चार्ट्स, ऐसा परसेंटेज वाइज ब्रेकअप कर लो चलेगा। दैट आई विल ऐड, वो तो आपको टोटल सेल्स दिखाएगा ना, जो ब्रेकअप हाँ रहेगा वो मतलब दिखाने के लिए तो आई नीड टू पुट दैट चार्ट ना हाँ, ओवर पहले देयर। डालो तो फिर, पहले डालो तो फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ओके। है, और सर वो लास्ट में कंपनी वाइज भी मैंने चार्ट ही डाला है, तो उसको भी पाई चार्ट करना है क्या? एकदम लास्ट में है कंपनी वाइज का। बार ग्राफ्स ये बोल रहा है ना? नहीं नीचे वो कंसोलिडेटेड कंपनी वाइज डेटा है ना, वो पूरा। ये तो ठीक है, ये दिस इज फाइन, इसमें कुछ नहीं है, ये तो एंड होता है वो ठीक है। मेजरली जब कंपनी के बारे में बताते हो, क्योंकि ये सब ना, अभी ये सब तुमने ऑलरेडी डाल चुके हैं ना उस पर, तुम जब डालते हो तो सब आ ही जाते हो हर एक बार, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही तो डालना है तुमको। ठीक है, अभी अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए फाइन, पहले तो इस पे फोकस करो, ये जाने दो अभी के लिए। अच्छा ओके। अच्छा, ये और ऐसा नहीं लिखते कभी, ऐसा कभी नहीं होता है चार्ट के सामने, कभी नहीं लिखते हैं इधर ऊपर या नीचे, ऐसा दिस ओके। इज नॉट, हाँ हमेशा ऊपर या नीचे, ऐसा साइड साइड में, क्योंकि हम है ना, दिस इज लाइक अ न्यूज़पेपर ऑल्सो, तुम लेफ्ट से तो लेफ्ट से पूरा रीड करते हैं, तो बीच क्यों गए बीच में, इधर ऐसा पूरा लिखा है, इधर रुक गया,
एक्चुअली सर ना वो ये पाई चार्ट जो था तो बहुत छोटा दिख रहा था, तो उसको बढ़ा के और फिर यहाँ पे स्पेस था, तो आई थॉट कि वहीं पे मैं लिख नहीं, देती हूँ क्योंकि मैंने वो ये भी गैप बोला दिखेगा। ये लेफ्ट है, ये इधर डालना ताकि स्पेस बच जाए। तो उसके नीचे हमेशा उसके ऊपर और नीचे लिखना है, ऑलवेज अप और डाउन, ऐसे ही जाना चाहिए चार्ट्स तुम्हारे। ओके, शुड मैं वो नेवर बी चेंज करके राइटिंग लेफ्ट भेजती हूँ। राइट, इट इज लेफ्ट राइट कभी नहीं लिखना है। वो एकदम ही रेयर केस में कि अगर तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तुमने थोड़ा बहुत लिखा, वो भी थोड़ा बहुत ही लिखना है, और दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, ओके, मैं चेंजेस करके भेजती हूँ सर। तुम्हारा देखता हूँ मेयर, मैं कल तुमने वापस भेजा था क्या मुझे मेयर? हाँ, ये पहले भी भेजा था और अभी अभी वापस से भेजा। अच्छा, नहीं नहीं, मिहिर, सॉरी, मिहिर को पूछा था। नहीं मैंने तो अब सर मिहिर लेमन तुम्हारा ट्री का लेमन ट्री का भेजा। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ सर, ऑटो का मैं अभी भेजता हूँ आपको 2 दिन में, ठीक ठीक है, ओके। दिसंबर मंथ। मिहिर, लेमन ट्री में वो जो तुमने डाले हैं वो इतना बोल्ड करके नहीं डालना है, इतना लेमन ट्री प्रीमियम, वो बॉक्स मत निकाल दो, सब जितने भी बॉक्स डाले ना वो पाई चार्ट पे, पाई चार्ट पे जो बॉक्स है ना, अच्छा हाँ ऐसे रखना सर, चाहिए, ऐसे उसका ही क्या नॉर्मल रीजन रखो था सब, नॉर्मल बेसिकली, रखो क्योंकि लिखा हुआ वो बस। ऑरिका और वो सब का खाली 2% बहुत कम छोटा छोटा है ना, तो वो दिख ही नहीं रहा था वो चार्ट के अंदर, इसके लिए फिर मैंने बॉक्स करके दिया वो। नहीं, वो अच्छा नहीं लगा है, तो ऐसे लिखो ना, सिर्फ बॉक्स क्यों डालना है, मत लिखो, वो साइड में रखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो इससे समझना चाहिए, तुम्हारे लेजेंड से समझना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, और ये प्रेजेंट करो आज से शाम को, अगर रहेगा तो विद्या मैम को प्रेजेंट करो रिपोर्ट। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, ओके। सर एक डाउट है सर, वो हाँ बोलो। एक्चुअली है ना, मैं कंपनी प्रोफाइल बना रहा था टीवीएस का। हम्म, तो हाँ, मतलब वो कौन सा वीडियोस देखूं, क्योंकि मैंने 10th अगस्त में एक वीडियो था वो मैंने देखा और मैं समझा, वो हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत बना, बट उसके आगे क्या बनाऊं, टीवीएस में डालना क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अबाउट द कंपनी और इंडस्ट्री व्यू डाल दिया है, बट हाँ। उसके आगे क्या डालूं मैं, मतलब इतना ही है कंपनी प्रोफाइल की और थोड़ा डालना है मेरे को? नहीं, कंपनी प्रोफाइल तुमको पूरे कंपनी को बताना है कि कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स। हम्म। लेट्स से वो 5 to 10 बेस तक होती है, तुम कौन सी करो, टीवीएस ना, टीवीएस के प्रोडक्ट्स हम्म। क्या है, टीवीएस के इंडस्ट्री के बारे में बात करो, अगर तुमने कंपनी मैं एक प्रोफाइल। सेकंड प्रेजेंट करूँ क्या, मतलब मैंने इतना तो लिखा है, तो फिर हाँ उसके बताओ क्या ऊपर लिखा क्या? है। मेरे को पता नहीं कौन सा वीडियोस देखना है, तो फिर भी मैंने एक एक सेकंड में। इनिशिएटिंग, ये देखा था ना 13 वाला। कौन सा वाला? मैंने है ना, नहीं नहीं नहीं, मैंने 13 वाला नहीं देखा, मैंने कौन सा देखा, मैंने 10th अगस्त में है एक, उसमें कंपनी प्रोफाइल का फर्स्ट वीडियो एक देखा था मैंने। या फिर ये आपने रिपोर्ट राइटिंग के भी है, देखो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का भी है, इंट्रोडक्शन टू राइटिंग इन इंडस्ट्री इनिशिएटिंग रिपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट थीसिस। कौन सा वाला है ये? ये रिपोर्ट राइटिंग का, रिसर्च रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग डे 5 ऑनवर्ड्स है, तो ये शायद देख लिया होगा तुमने, हाउ टू राइट इनिशिएटिंग भाई रिपोर्ट राइटिंग, वही था, अबाउट द नहीं, कंपनी। कौन सा वाला देखो मैं? तुमने बताना अभी क्या क्या किया है। ओके, मैं दिखाऊँ क्या मेरा स्क्रीन, मतलब हाँ प्रोडक्शन। एक बस देख लो, मतलब मैंने फॉर्मेटिंग इसमें मत जाओ, बस इसमें देखो कि हाँ, मैंने ये बस ये डेटा लिखा है अभी, तो मतलब बस थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर 39.4 मिलियन, 18.7 मार्केट शेयर करंट ईयर, स्कूटर लेड पोर्टफोलियो। नहीं तो अभी इंडस्ट्री और किधर आ गया बीच में, उसके बाद। इंडस्ट्री भी वो मतलब हाँ बाद में आ जाएगा, वो मैंने बस सिर्फ डेटा अच्छा, ओके, हाँ। किया। तो नहीं तो अभी हाँ इसमें मैंने लगा टू व्हीलर्स, तो टीवीएस ना, टीवीएस का थ्री व्हीलर्स में, सॉरी, रेवेन्यू, मेजरली रेवेन्यू कहाँ से आता है इसका, तो पहले ब्रेकअप कि ये कितने बिकता है, तो तुमने डाला है यहाँ पे, तो इट शुड बी ऑल इन चार्ट्स। हाँ, वो मैं बना दूँ। हाँ, फिर उसके वॉल्यूम्स कितने थे, कितने बड़े, लास्ट 5 इयर्स या 5 इयर्स या जो भी 5 इयर्स के तुम्हारे पास अगर डेटा है, फुल ईयर के डेटा कि वॉल्यूम्स कितने बड़े हैं, उसमें क्या ब्रेकअप था टीवीएस का। ओके, तो मेरे को पूरा ओके, 5 साल का बनाना पड़ेगा, हाँ, ठीक 5 है साल का चलेगा। कितना था, कितना वॉल्यूम से कितने बड़े, फिर उसके बाद ब्रेकअप क्या है ओवरऑल ना, स्कूटर पोर्टफोलियो का, वो तो तुमने क्या, स्कूटर और स्कूटर मोटरसाइकिल्स ईवीज कितना फर्क है तीनों में,
अच्छा अभी मोपेड्स भी यहाँ है। पे बाइक्स के नाम ना सी टीवीएस motorcycles scooter led contributing 45% of volumes and followed by motorcycles, mopeds and electric. Okay, within scooters, Jupiter anchors uh, within scooters. Okay, Jupiter has the highest category. Okay, with average selling price of funding 35. Okay, ठीक है. फिर नीचे ब्रेक इतना लिखा ना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए. फिर ब्रेक. Motorcycles in motorcycles, Apache leads. 136%. हाँ भाई, तो ये सब जो लिखा है ये अभी ये वापस क्यों है? मोपेड अच्छा एक ही है क्या स्कूटर्स के बारे में? अच्छा तो एक है तो दो साथ में लिख दो, फिर एक ही लाइन है तो मोपेड्स और अच्छा स्कूटर साथ में लिख देना. हाँ हाँ, मोपेड, स्कूटर्स और ईवी मैंने अलग अलग से लिखा है। तो ईवी का वापस एक ब्रेक कर, ईवी के बाद ब्रेक करना, ईवी के बाद ब्रेक करो. हाँ एंड ये जो मोटरसाइकिल के साथ एक्सेल जो है वो एडेड विद द मोटरसाइकिल. एक्सेल 100 टीवीएस क्या है? दिस लुक्स अभी ईवी ज्यादा बड़ा हो गया कंट्रीब्यूटिंग नहीं. एक्सेल सोल्ड मोपेड ऑफरिंग कंट्रीब्यूट्स 12% टू द मोपेड शेयर. मतलब मोपेड एक फाइन ही ठीक है है. उन हाँ लोग के पास, एक्सेल ठीक है फाइन. 100। हाँ, और ईवी का उन लोग ने 8.2% है पूरा पोर्टफोलियो का। ईवी. अच्छा अभी ये तुमने जो लिखा है ना दिस ऑल पार्ट, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट इज कंपनी डूइंग. ठीक है अभी इसके टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? कैन राइट द प्रोडक्ट्स. या फिर तुमने अपाचे के बारे में तो अपाचे का तो टोटल सेल्स कितने हुए लास्ट 5 years में? व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर टीवीएस एंड व्हाट इज द ब्रेकअप? अभी रिसेंट ब्रेकअप तुम यहाँ पे चार्ट में ये जो लिखा है वही यहाँ पे चार्ट में तुम डाल सकते हो. पहले तो 5 years का डेटा कि इनके सेल्स कितने बड़े हैं, वॉल्यूम्स. ओके फिर नीचे तुम लिख सकते हो कि लास्ट 5 साल में टीवीएस में हीरो में ऐसा सॉरी टीवीएस में ऐसा क्या हुआ है कि वाई ये वॉल्यूम इतने क्यों बड़े थे, क्या क्या रीजंस थे. ओके, तो अच्छा वो फिर ऑटो पंडित्स है ना 5 साल का? ऑटो पंडित से नहीं, तुमको वो इस पे मिल जाएंगे ना टोटल. जब तुम प्रेस रिलीज से देखते हो, प्रेस रिलीज में फुल ईयर का नंबर आता है ना. हाँ, बट वो अपाचे स्पेसिफिक नहीं है ना? अपाची स्पेसिफिक नहीं, पहले तो वॉल्यूम स्पेसिफिक यहाँ से चालू हुआ ना. तो नहीं, बट प्रेस रिलीज में अपाचे के बारे में नहीं बताते ना। वन से एक सेकंड नहीं नहीं प्रेस रिलीज नहीं, एक सेकंड आई विल शो यू हाउ द रिपोर्ट शुड गो. नेक्स्ट स्क्रीन बंद किया क्या? मैंने शेयर स्क्रीन बंद किया। नहीं करो ना, चालू रखो ना, मैं तो दिखा रहा हूँ, उसी पे दिखा रहा हूँ. Rishabh sir, I have something to ask. One yeah Prabhu, anything special? 1 second, let me finish this. Yeah, sure. Can see this? दिख रहा है ना डॉट? हाँ हाँ, दिख रहा दिख आपको? रहा है ना. हाँ तो टू व्हीलर पोर्टफोलियो लेड बाय स्कूटर्स. अच्छा ऊपर जाना थोड़ा, लेट्स गो अप. ठीक। मेरे को कंट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? आई एम नॉट एबल टू गेट कंट्रोल. Okay. So the company largest two wheeler selling 39 million okay vehicles across motorcycles, scooters, electric, mopeds. Okay. ये हो गया as per 2025. ठीक है ये जो numbers थे वो. So where is this numbers Yes. into a कैलेंडर या 2025? calendar. अच्छा कैलेंडर. ओके फाइन. सो हाँ यूजुअली हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर लेते हैं. ठीक है फाइनेंशियल ईयर इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग, बस कैलेंडर ईयर में हम नहीं देखते. ठीक है. अच्छा, अच्छा वो फिर थोड़ा लेटेस्ट होगा फिर इसलिए ये हम- जितने लिखा सब लिखा, मैं समझ गया कंपनी क्या करती है इसमें. अपाचे इज द टॉप प्रोडक्ट. फिर नाउ योर रिपोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर ईयर. 39 मिलियन थे ना, तो लास्ट 5 साल में कितने थे, कितने बड़े? ओके ओके फ्रॉम द लास्ट 5 years यू हैव टू गिव अ ट्रेंड कि लास्ट 5 years में 39 मिलियन सिर्फ ये टोटल नंबर्स. ओके फिर तुम एक रीजन दोगे कि ना उसमें टू व्हीलर सेगमेंट में ऐसा हुआ, नए लॉन्चेस हुए, ये हो गए, वो हो गए. सो वॉट एवर द रीजन यू गेट, फिर यू टॉक अबाउट उसमें से मोटरसाइकिल्स में कितने से ग्रो हुआ है, उसमें से स्कूटर्स कितने से ग्रो हुआ है, एंड द रीजंस फॉर दैट. हर एक पेज मोटरसाइकिल्स का, या फिर एक पेज में मोटरसाइकिल स्कूटर्स इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है.
फिर उसके बाद मोटरसाइकिल्स में तुम उसको बता कि मोटरसाइकिल्स में कौन से मोटरसाइकिल्स आते हैं, वो तुमने लिखा है यहाँ पे टोटल. फिर विल टॉक ओनली अबाउट मोटरसाइकिल्स, वन पेज ओनली अबाउट मोटरसाइकिल्स, कि मोटरसाइकिल्स देयर आर 10 प्रोडक्ट्स ऑफ टीवीएस. तो 10 प्रोडक्ट्स ऑफ टीवीएस में इफ यू कैन पुट इन चार्ट्स कि ये चार्ट्स चार कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पूरे फुल ईयर के नाम. ओके, फिर तुम बोल सकते कि अपाची ग्रो हुआ है या लेट्स से रेडॉन ग्रो हुआ है, तो उसके रीजंस क्या थे, या डिक्लाइन हो गया तो उसके रीजंस क्या थे. देन यू गो टू स्कूटर्स. क्योंकि स्कूटर्स बढ़ा है तो स्कूटर्स की बात करेंगे पहले. स्कूटर्स में क्या हुआ है, टीवीएस एंटॉर्क ग्रो हुआ है, इतने सारे मॉडल्स थे, इतने लॉन्च हो गए, फिर चेंजेस हो गए, फिर क्या रीजंस थे उसके चेंज होने के. बस मोटरसाइकिल स्कूटर्स फिलहाल तो इतना ही करो कि वॉट एवर यू कैन टेल मी अबाउट द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ टीवीएस. मतलब इट शुड बी लिंक टू ईच अदर. सर मैं अभी भी वही पूछ रहा हूँ, वो मॉडल वाइज ऑटो पंडित से मिलेगा ना मेरे को? हाँ, मॉडल वाइज 100% से मिलेगा, तो पर टोटल इसमें मेरे नंबर्स को क्या बोल रहे हो. वही मतलब मेरे को ऑटो पंडित से ही मेरे को 5 साल का पूरा मंथ ऑन मंथ लेना पड़ेगा ना? नहीं, कि 5 साल का मत लेना, ईयरली लेना, ईयरली नंबर्स लेना. ओके, और अपना तो ईयरली नंबर प्रेस रिलीज में मिलेगा? प्रेस रिलीज में है ना ईयरली नंबर. हाँ, अपाचे Q4 के, एंड एवरीथिंग. Q4 या फिर जो लास्ट मंथ मार्च के मंथ में सब मिलेंगे फुल ईयर के. ठीक है, मैं देखता ठीक है. हूँ और प्रोडक्ट मॉडल वाइज, हाँ प्रोडक्ट वाइज तुमको 5 साल का बहुत टाइम लगेगा लेने को, तो प्रोडक्ट वाइज लास्ट ईयर का ले लेना कि अपाचे में लास्ट ईयर में क्या हुआ है. जितने तुमने नंबर्स डाले उतने ही लेना, क्योंकि वरना ज्यादा नंबर, 5 साल के तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे. ठीक है. हाँ ठीक है, ईयर एंड देखता हूँ मैं ईयरली प्रेस नंबर रिलीज देना, Q4. मतलब पूरे 12 महीने में क्या हुआ है, या चलो 2 साल में क्या हुआ है उसके नंबर्स ले लेना, या फिर उसको ठीक है क्वार्टरली स्प्लिट करके 8 क्वार्टर्स के नंबर्स लेना. ओके. अगर तुमने कितने ईयर्स के नंबर्स डाले तुमने ऑटो पंडित में. नहीं, मैंने मतलब अराउंड 13 मंथ्स का नंबर्स है मेरे पास फ्रॉम दिसंबर. ठीक है, तो फिर तो जितने हैं उतने उसी की बात करना कि क्या हो गया. डोंट गो मच डीप इनटू इट, बहुत टाइम लगेगा. और ओके. ठीक है, तो फिर मैं वैसे ही करता हूँ कि ट्रेंड 2 क्वार्टर्स का करता हूँ, ऐसा कुछ 2 मतलब क्वार्टर्स का, सिक्स सिक्स हाँ, मंथ्स का करता हूँ. 6 मंथ्स का, या जो भी है तुमको जितना लगता है. एंड उसके रीजंस कि मॉडल वाइज रीजंस, सब मॉडल्स की जरूरत नहीं है, जो तुमको पता है हाई परफॉर्मिंग मॉडल्स है उसी के, जैसे अपाची हाँ, हो गया, अभी मैंने एंटॉर्क हो गया. ऑलरेडी इसमें कर दिया ना अपाचे, और ये तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा हाँ, कर. बता दिया. तो जो हाई हाई मॉडल्स है उसी की बात करना है, सब मॉडल्स की बात नहीं करना है. तुमको बताना है कि इतने इसके मॉडल्स है ओवरऑल सेगमेंट में, उसके कौन से मॉडल्स है वो पहले बताना है, एंड फिर उसमें क्या ग्रोथ हो रहा चलेगा, मैं करता हूँ, ऐसा कुछ है. करता हूँ. बट स्पेसिफिक वीडियोस है क्या जो मैं देख सकता हूँ आपके वो इसमें? ना, हाँ, एक सेकंड में बताता हूँ. वो वीडियोस तो ना, फिर मेरे को इजी होगा. आई थिंक टीवीएस का नहीं है, बट नहीं, वो मारुति का या किसी का भी होगा तो भी चलेगा मेरे को, मैं सिर्फ समझना. मारुति का ना, मैंने कौन से इसमें, don't 10th अगस्त remember. वाले में है शायद. 10 अगस्त में है, not sure. शायद मैंने देखा था 10th अगस्त में, लिटरली है नहीं, वही मैंने देख के ना मैंने. रिपोर्ट राइटिंग है ना, सब रिपोर्ट राइटिंग की वीडियोस में मैंने अलग से रखे थे इस पे. अच्छा, तो उसमें रहेगा. हाउ टू राइट इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, ये एक बार देख लो ना, 10-11 फास्ट फास्ट फॉरवर्ड पे. ठीक है, 10-11 देख लूंगा. हाँ, 10-11 ये रिपोर्ट राइटिंग में, 10-11-12 एंड इतना ही है. 10-11-12 अबाउट द कंपनी था, ये देखना अबाउट द कंपनी था, ये देखना स्पेसिफिक. 12 वाला देखना पहले. अच्छा, ओके. तो शुरू 12 से करूँ? पहले वो अबाउट द कंपनी कर रहे हो ना, तो ये 12 में होगा वो, क्योंकि ठीक है. प्रॉब्लली तुमने पहले के रिपोर्ट्स देखे हैं, तो इसमें शायद फॉर्मेटिंग ही है सिर्फ, कैसे लिखना है क्या ठीक लिखना है. ठीक है, मैं 12 देख के 12 बनाता हूँ देखो और फिर टीवीएस का. 10-11 देखना. ठीक है, 12 और फिर 10-11 देखता हूँ, फिर रिपोर्ट बनाता हूँ. ठीक है, चलेगा, समझा. ओके. ठीक है, थैंक यू. या प्रभु. Yeah, sir. So I got an offer from Gallagher and Mohan yesterday, 11 and sorry, they lowballing a lot right now. So how should I yeah, negotiate with them right now? sorry, I didn't get you. Uh, can you hear me now? I can hear you, yes, yes. Yes. So I got an offer from Gallagher and Mohan yesterday, Mm-hmm. and they are lowballing a offer by a lot. So Lowering offer, हाँ. Because Galero, that company is into real estate. So what has yeah, nothing to do with specific research and all. no, the position they are giving me is investment analyst Ah, in real estate. real estate. That's what I said. No, I one of Yeah. our student was also there. He rejected the offer.
because there now the growth is very limited. Okay. And obviously, because it's an entry level role, Prabhu, that is why they are giving you that less. No. Like it's in 20s, near 15s, Okay. but it's a senior investment role. Acha, okay, senior, okay. But it's a real estate part. Again, you have to think Yeah. on it. So I have a question. Like in India, if I go in real estate right now, so it will be tougher to change in equity Yes. side in future. That has nothing to do with equity, Okay. Yeah. nor even investment banking, Yes. because they will focus only on real estate. And then, for the next role, real estate jobs are not available as such Okay. for your next role. Because I will not prefer that role. If you are, see, I'm not saying that don't go, think about it. But what is your thought process? Where you have to, where do you see 5 years from here? If you're seeing yourself as an investment banker, then that is not the role to go. But you think, okay, salary is important at this time, then, it is up to you. I cannot say that, don't go, because okay, 15 is not a bad salary. Like that. Yeah. So I have one more question. Like uh, I haven't get any like interview from RK Advisory. So I want to know like what are the what's the schedule I should do so I can get any referral from you So guys. for that referral, so I need your interaction with me. I don't know you as of now. So Okay, I so have I'm to coming interact. regular in these classes. So But you don't present anything. okay, so okay, I will do the newsletter also, but uh, so can See now the can reports that these guys have made, Abdur and okay, I Abdur. will send you the report. I'm working on a report right now on IHCL. It will be done by Monday. So I will send it to you. I've already done with financials. I have to just create the report now. Okay. Okay. So also prepare a model since you know how to make a model. So Yeah, I've already made the financial models for that. okay, great. So how deep have you gone at it? So I need to know that, how much deep have you Okay. gone in the model? Okay, Okay, what I'll send it to you by Monday and then we can take. Sure, because what happens, the reason where arcade wise, they will have experience. They want experience in what that you are doing something on a regular basis, specifically on any markets. Okay. Okay. So if I know that, okay, Prabhu, you are working on this sector, you are working on this. So I know now where to, whenever there's an opportunity, I will tell you, okay, Prabhu, apply over here. Okay. Because majority of our students now, even if we're having the course, I just say them go and apply over here because you have the right kind of knowledge, right kind of reports, right kind of models. Yes. Because they are not looking at your CV. They are looking at what are you doing. So many of the students have got the role even where I don't know only that they have been placed. It's been at times. And now I've said that there is a report, you have, you're doing things. Now the Cringel who got placed, I didn't refer her. There was an opening, I said, Cringel, okay, apply over here with all the reports that you have made. She got a role. Okay. So 30-40% of the roles are, being placed like, because see, I don't want you to wait for 3 months. If you know things Yes, better, yes. do things on a regular basis. Okay. Because if I refer to, I should know you, how are you speaking? Yeah, What are you I understand presenting? that. That is because referral is that big. Because if I give you a referral HDFC, he is like director of the company. He will Okay. ask Bishop, do you know that person? Because it is the referral is like that. If I refer you, 90% of the time you will get it, unless you don't do anything wrong in the interviews. Okay, so I will be more interactive in morning Yeah, calls. so that is why I have why I spend 1 hour 2 hour every day. Yes. I don't Okay. teach anything today. I just want to know that what are you doing? What is your thought process? Okay. Okay. But you can also check it that 15 lakhs is fine because that is the range in that field. Okay. You can negotiate them with 20 lakhs if they are saying take it. वरना उनको ऐसा दिखा दो ना कि मुझे दूसरा रोल मिला है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं. Okay. I will try to do that. Obviously, it is nothing to lose from your end. Okay. Yes. So I'm getting a package from other company. Don't name anything. Just bluff it up. Okay. I'm getting so this is the low. I'm getting X amount of salary over there. If they actually value, they will call back. If you Okay. think they are not valuing you, better not to go. Okay. But I will say 15 lakhs going from them. I will say 10 lakhs go in equity research. It will be better, from your career perspective. It's like that. Yeah, so right now I'm still got a call from Krishal for the same, but it was not a
investment focused role. It was more a reporting role. So I think I have like 2 or 3 years of experience. It usually make effect how much they are saying. So I think I can get more in equity research than in this job. So I was a little confused. No, more in, I didn't get you. More in More in equity research side. the salary? Yeah, salary side. No, salary to Prabhu, I doubt, you know, you Okay. will not get more salary into research. Okay. Probably with your experience, because your experience is not in India, na, if I'm not wrong. Yes. Yeah. It's not in India. That's the problem. Okay. So usually CRISIL, Acuity, you know, they like such kind of experience. Now the question is, what is your base? The base is not known. That's the problem. Okay. Let's say if you had a base, even if you had worked for, you know, few, because you cannot take the US base over here or maybe the outside base over here. Yes. The base is the problem. Now it will Okay. depend. I said, no, CRISIL give 10 to 20 lakhs anywhere. Depends on how you perform. You can also Okay. get 20 lakhs. You can also get 10 lakhs. Now they will say you deserve only 10 lakhs because they said me, you deserve only 10 lakhs. But somehow, you know, I tried to manipulate them. I'm getting a role at some other company, etc., etc. So they gave me. So you try doing this with Galler. Okay. I'm interested, but the salary that you're giving is very less. I'm getting other salary, but giving your company and etc. I will prefer your role. Some, you know, something कोई दे देना कुछ तो ऐसे ही Okay. बड़ा चढ़ा के उसके HR को, because they will call you. If they like you, they will call you again. Okay. ऐसा. Okay. Don't say कि मुझे I deserve this much, I deserve that much. I'm getting directly. Okay. I'm getting from other company, but that company is not that big as your company. I will be like, I will prefer your company, but this is what my expectation is. Okay. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.